So in the election atmosphere where Modi might be taking one sabha or Rahul Gandhi taking another sabha, we, I think since last 7-8 years learning GST here and there, attending the sessions. Yes or no? Yes. So I think coincidentally Modi 3.0 and GST tribunal we might see in June, July. So therefore I chose this topic, GST tribunal. Thank you Pune branch, Amruta ma'am, Rajesh sir and my beloved friend Pritesh for giving me this opportunity to discuss with you the intricacies of GST tribunal and the art of litigation in tribunal. So it's an afternoon session, one of the tough job for me. I request all of you please be with me. इस तरह के रिएक्शन कोशिश करना है मत दो और व्हाट्सएप पे भी मत रहो. I will try my best कि आप मेरे साथ you will be with me. Yes, you know, I have seen that in tribunal hardly we see that in indirect tax tribunal hardly we see that the chartered accountant is there or were practicing into that. Rajesh sir called me, he said that Pune branch to organize this conclave and what can be the best topic. I said tribunal, let's prepare our chartered accountant for the new area of practice in GST tribunal. Yes, mood could also was there. So it's one of the very good statement by Henry Beecher that law is valuable not because it is law but there are inherent right in it. GST law has seen that many times we are not aware of अपने अधिकार क्या है, अपने right क्या है. I hope everyone comfortable in English हिंदी. थोड़ा आफ्टरनून का सेशन थोड़ा हेवी हो जाता है ना या नहीं? क्या ऑलरेडी हेवी हो गया है? 6th session na? It is difficult to attend. I think Rajesh sir, you can write one book on GST now. You might be the person who attended maximum lecture, and I think all the faculty might have listened. You know, yes sir? Yes. The book is in process. Book is in process. Acha. So it's high time that we should start preparing for ourselves in tribunal. What you feel that tribunal, आपने कुछ सुना है tribunal कब आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ कहीं पे बन गया है, कहीं पे नहीं बना है? Anything you heard? Yes sir. हाँ? It's not been notified, but it has not really started anywhere. अच्छा. And why it is delayed so much? What can be the reason? Because the law when it was made, हाँ? the law when it was made, it seemed that the GST tribunal would be again same as the Commission of Appeal. It would not have independent judicial officers. That was the basic problem, and I think the amendment now has been made to Okay. on the basis of various court rulings. कोई तो बोल रहा था नहीं वो गवर्नमेंट के थर्ड एजेंडा में है, तो इसलिए डिले हो रहा है. उतने केसेस जमा So, होने हाँ? तक रुके हो. हाँ? उतने केसेस ट्राइब्यूनल लेवल तक आने के लिए रुके नहीं हुए. भी बहुत जमा हो गए सर. That we are thinking. You know, We are in not service able- tax currently the pendencies of almost 2 years. Yes. सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल में सेस्टैट में सर्विस टैक्स एसएस की पेंडेंसी 2 साल के. जीएसटी में अभी जो सब शुरू होगा तो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी. होप उसके पहले एमनेस्टी आ सकती है टू क्लियर ऑल दिस फॉर विच वी आर वेटिंग कि कुछ ना कुछ अलग एमनेस्टी आ जाए. वो शायद थर्ड एजेंडा में रहेगा. यस. सो नॉर्मल फ्लो ऑफ लिटिगेशन हम पहले एजुकेशन अथॉरिटी से डील करते हैं, उसके बाद अपील अथॉरिटी से डील करते हैं, फिर अपील ट्रिब्यूनल, then high court and supreme court. So today our discussion will be limited to first 3 part of these boxes. I will be little bit touching upon the appeal provision. I think it might be covered or you must be aware, but थोड़ा होना चाहिए background में जानकारी, इसलिए I will repeat it. So you know in GST appeal we are required to file within how many days? First appeal. First appeal. 3 months or 90 days. Huh? You know, advocate talks in this language. 3 months or 90 days. एक दिन के ऊपर भी मारामारी हो जाती है. So it's 3 months
From the date of receipt of the order. So very important, as my topic is managing our litigation or legal ways too, we should have the acknowledgement document or the postal document or some proof in case of delay to prove that I have received it afterwards. Many times you can see that still officer passing manual orders. They are not uploading on the portal. Like Tranman verification order, they will not upload on the portal, they will send you by email. So you should have the copy of that always. When your client send you that कि सर ये courier आया है, post आया है, so again ask him sir उसके साथ वो जो आया हुआ acknowledgement envelope है वो भी मुझे भेजो. That is very important. So rightly said 3 months from the date of receipt. Delay condonation for how much period further? 1 month. In case of there is some important reason. Can we condone delay afterwards? No. Any possibility? No. After making request? No. Other request? Possible? Anyone succeeded? Yes. So law is very strict in this case. Officer cannot do that. So 3 months plus 1 month. And the condition is that we must have paid the pre-deposit. Pre-deposit is how much? 10% of? What about interest and penalty? Huh? Okay, assuming I have received a order for 1 crore, out of which 30 lakhs is acceptable to me. How much pre-deposit I should make? 30 lakhs plus? Perfect. Can I make the pre-deposit by credit ledger? Yes. Yes or no? 100% yes? Still somewhere, some of the part of the country, some officers are not accepting. So there are indirectly this matter is that the confusion in the air is cleared by the government. कुछ सर्कुलर्स आए, कुछ हाई कोर्ट्स के रूलिंग्स भी आए हैं. इनडायरेक्टली जो अभी अमनेस्टी आई थी जिसमें बताया गया था कि आपको 12.5% अमनेस्टी आई थी ना अपील की, अवेयर? यस और नो? सो उसमें बताया था कि आपको 2.5% क्रेडिट से भरना, सॉरी कैश से भरना है. इसका मतलब 10% तो कैश से भर ही सकते हैं. In GST there is no stay application required, मतलब any other stay application. कभी कभी कोई प्रोफेशनल पूछते हैं कि सर इसमें स्टे लेना है तो क्या करना? स्टे once you make the pre-deposit it is deemed stay. कभी कभी कोई कंपनीज के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें बहुत कुछ लिटिगेशन स्टे वगैरह सुना होता है पास में, वो बोलते हैं स्टे लेके आओ. हमें अलग स्टे लेने की जरूरत नहीं है जीएसटी में. once you make the pre-deposit it is a deemed stay. Now, these are the inherent right in the law that aperture being heard, adjournment, we can seek the adjournment. Additional grounds of appeal. अगर हमें during the course of hearing, during the course of submission, if we have any additional grounds, we can definitely add any other additional grounds. Can the first appellate authority remand back the matter to the adjudicate authority? Remand back? Yes or no? No. रिमांड बैक करते हैं ना, हमने सुना है ना बहुत बार. हाँ? यस और नो? अच्छा, कितने लोग नो बोल रहे हैं? हाथ ऊपर करना. और यस वाले? बाकी लोग? So first appellate authority don't have the power for remand back. There is no express provisions to them. What about appellate authority? As tribunal, we will see. Speaking order, very important, which is lacking in many cases. आपका जब ऑर्डर आती है, हमने आपका क्रेडिट डिनाई कर दिया फलाना अमाउंट का, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग. फिर आप उनको डिटेल मांगोगे, वर्किंग मांगोगे, फिर 4-5 बार आप विजिट करोगे और फिर हमें वो देते हैं कि ये रीजन है आपका. ऐसा होता है आपके साथ? Yes or no? So, but the law says that you should pass a speaking and detailed order with reasons of why you are passing this order. And as far as possible, you should conclude the
appeal within 1 year. Now, important, this question is asked many times, that whether physical submission of appeal required or not required. हाँ? तो है या नहीं है? है भी और नहीं भी. है भी या नहीं भी? See, I'll give you a background. पहले प्रोविजन ऐसा था कि आपको अपील सबमिट करना था ऑनलाइन, फिर उसके बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद इन 7 days टू द अपीलेट अथॉरिटी. कुछ लोगों ने वो सर्टिफाइड कॉपी सबमिट नहीं की 7 days में, और इसलिए उनका अपील टाइम बारिंग हुआ. देन दे वेंट इनटू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ने बोला नहीं ठीक है, प्रोसीजर लैब से आप कंडोन कर लो इसको और इनके अपील एक्सेप्ट करो. जब ये इशू मैंने पढ़ा, सब कुछ देखा, तब मैंने अगस्त 2022 में इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया कि ये क्यों प्रोविजन थी, ये सर्टिफाइड कॉपी की रिक्वायरमेंट आई कहाँ से, फ्रॉम वेयर इट ट्रिगर्ड. सो इट्स लॉन्ग प्रोविजन इन अर्लियर आल्सो सीपीसी सीआरपी सब जगह. पहले जो बाकी क्रिमिनल सिविल केसेस में चलता है वहाँ पे भी ऐसा होता है कि सर्टिफाइड कॉपी लगती है, क्योंकि पहले ऐसा होता कोर्ट एक जगह होता था, एक शहर में, दूसरे शहर में दूसरा अथॉरिटी होता था, तो इसलिए सर्टिफाइड कॉपी का रिक्वायरमेंट था. आई रिमेंबर दैट मैंने अगस्त 2022 में इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन बनाया, फॉलोअप किया अथॉरिटी के साथ, उनको एक्सप्लेन किया कि जरूरत नहीं अभी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन कॉपी है अवेलेबल. एंड जो भी कभी कभी हम बोलते हैं ना कि चेंजेस होते नहीं है, कुछ होता नहीं है, इमीडिएटली मतलब बिफोर सजेशन ऑल्सो दे टोल्ड मी कि ये हो जाएगा. और दिसंबर 2022 में इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया कि इफ द ऑर्डर इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल, सबमिशन ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी इज नॉट रिक्वायर्ड. So such changes we can brought, मतलब कभी कभी आप एक ईमेल लिख दो, हो जाता है, हेमंत सर इज हियर एंड इन जीएसटी आपको एलयूटी सब आप लोग करते हो ना, हम लोग एलयूटी ऑनलाइन. इन एक्साइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट, सम पीपल माइट हैव ऑब्जर्व्ड. एक्साइज में किया है किसने एलयूटी पे काम? सो इन अवर एमसीए कमिटी वन सर इज देयर, तेंदुलकर सर, ही स्ट्रांगली फॉट विद द डिपार्टमेंट फॉर द एलयूटी एट द टाइम व्हेन जीएसटी वाज अबाउट टू इंट्रोड्यूस, कि ये स्टैम्प पेपर पे क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्या चाहिए. एंड वी आर सीइंग द बेनिफिट कि एलयूटी हम जस्ट ऑनलाइन बटन क्लिक पे वी गेट द एलयूटी. पहले बहुत भयानक प्रक्रिया थी उसकी, आप रेंज ऑफिसर को सबमिशन करो, फिर रेंज ऑफिसर आएगा, विजिट करेगा, रिपोर्ट बनेगा, डिविजनल में देगा, फिर डिवीजन में जाओ. सो नाउ द अपील रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट इज कि मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर पास्ड ऑनलाइन, तो आपको कुछ भी फिजिकल सबमिशन करने की जरूरत नहीं है. इन केस ऑनलाइन ऑर्डर इज पास्ड, फिजिकल सबमिशन की जरूरत नहीं है. बट अगर ऑफलाइन ऑर्डर है तो आपको सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करनी है. सर्टिफाइड करनी मतलब आपको अपील भी सबमिट करोगे और सर्टिफाइड कॉपी भी सबमिट करनी है. अंडरस्टूड? यस और नो? जोर से यस और नो? ऑफलाइन ऑर्डर निकाल सकते हैं? हाँ, नोटिस ऑफलाइन निकाल सकते हैं? नहीं, ऑफलाइन मतलब ईमेल पे आ गई है, पोस्ट से आ गई है. हाँ तो वो निकाल सकते हैं, ऑनलाइन ही चाहिए ना पोर्टल पे. नहीं, फिर ऑफलाइन के केस में आपको मैनुअल सबमिशन करना है. हाँ, नहीं ऑनलाइन आई है तो फिर ऑनलाइन आया ही नहीं, सिर्फ ऑफलाइन आया. तो फिर आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा सर, ऑनलाइन तो नहीं कर पाओगे. हाँ अपील कैसे फाइल करेंगे? हाँ, अपील कैसे फाइल करेंगे? फिजिकल सबमिशन करना पड़ेगा. शुरुआत में हुआ था ना ऐसा, ईवीएल केस में आज भी हमें ऐसे करना पड़ता है कभी कभी. बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस जब आपका हियरिंग होता है उस टाइम पे थोड़ा ठीक से डिस्कशन हो जाए, फिजिकली सबमिट किया अच्छा रहता है. क्योंकि एक प्रॉब्लम भी क्या, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ट्रिब्यूनल जब तक हो रहा नहीं, वो केसेस को हियर नहीं कर रहे हैं, और जब वो मैटर आता है तो आपका एम्प्लॉय, क्लाइंट का एम्प्लॉय वापस वो सेट बना, उससे अच्छा फिजिकली सबमिट करके, मतलब बेटर टू सबमिट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज एंड यू शुड ऑल्सो हैव दैट सेट. सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज माय एडवाइस इज दैट हमें फिजिकल सबमिशन करना ही है. और दूसरा और एक रीज़न है, वहाँ पे जो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वहाँ पे साइज लिमिटेशंस होता है. आपका आप कुछ अलग वर्किंग होगा, रिकन्सिलेशन होगा, जो भी कुछ होगा, एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू सबमिट. सो फिजिकली सबमिट करना है. Many times question arises, another question is of appeals, कि to which authority we should file the appeal? How to know? सभी टाइम नहीं लिखा हुआ रहता है.
जाके पूछ ले। Yes? Yes or no? Sabhi, it's not there. So law says, in case of CGST authority, why we should know? Because ये क्वेश्चन आता है और आपको ये ट्रिगर करेगा जब आप कोई दूसरे स्टेट की अपील कर रहे होगे और उसमें लिखा नहीं कि कौन से अपील अथॉरिटी को आपको एड्रेस करना है. Because very important, we should address the proper authority. So where decision is passed by additional joint commissioner, तो आपको कमिश्नर अपील को करना है. And whether whereby the rank below the joint commissioner, in case where the order passed by DC or superintendent. ये हुआ CGST केस में. और SGST केस में there are two authority, joint commissioner appeal and deputy commissioner appeal. इन दोनों को करना है. So any question on the first appellate authority? Now we'll start discussion with the tribunal. So tribunal, महाराष्ट्र में बेंच है ट्रिब्यूनल का, होगा या नहीं होगा? पुणे में है या नहीं है? किसने सर? अच्छा. So now we can file appeal to CISSTAT against the order by appellate authority or revisionary authority. Now the principal bench of the GST tribunal, JSTAT, will be at the New Delhi. It will have 4 members, which हमें ये सब मालूम होना चाहिए किस तरह से बेंच है, क्या है, क्या स्ट्रक्चरिंग है वगैरह वगैरह. So it will have 4 members. The first is president, judicial member, and 1 technical member center, 1 technical member state. So 4 members. And what about state bench? So state bench will have again 4 members. There will be 2 judicial member and technical member and state member. So whether it is a principal bench or state bench, there will be there are going to be 4 members. अभी हमारे CISSTAT में कितने मेंबर होते हैं? सेल्स टैक्स में ठीक है, जान दो, ओल्ड लॉ है, जीएसटी का याद में रखते हैं. सो 4 मेंबर्स. अभी ये लोग छुट्टी में जाएंगे, एक गया छुट्टी में, तो कैसे होगा? एक बड़ा चक्कर होता है इनका, वैकेशंस बहुत ज्यादा होती है इनकी. और 4 में से हमेशा छुट्टी पर. हाँ, 4 में से कोई एक छुट्टी पे सर्कुलरली रहता ही है. हाँ, नहीं पर प्रॉब्लम होता है सर बहुत बार. नाउ दैट principal bench will deal with the case of only place of supply. It is mentioned in the law कि place of supply के जो cases होंगे वो सिर्फ और सिर्फ principal bench ही deal करेगा. It means that if you have a case relating to place of supply, you'll have to file the appeal with the principal bench at New Delhi. एक बेंच से दूसरे केस में केस प्रेसिडेंट को लगा तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं. और स्टेट का जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर होगा, ही विल बी वाइस प्रेसिडेंट. व्हाई वी शुड नो दिस? कभी कभी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अर्ली हियरिंग मोशन एप्लीकेशन देना पड़ता है. सो वी शुड नो किसके पास करना चाहिए. इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड कि इन केस ऑफ ट्रिब्यूनल अपील विल बी हर्ड बाय द appeal will be heard by the single member or 2 member. It is provided in the law. कब single member करेगा और कब 2 member करेंगे. So when the tax or ITC involved or fine, fee, penalty does not exceed 50 lakhs and which doesn't involve the question of law, the 2 criteria, 50 lakhs के ऊपर नहीं होना चाहिए total demand and question of law नहीं होना चाहिए. In such a case, it will be heard by any single member. Understood? Yes? In other cases, 1 judicial member, 1 technical member. Yes, sir? 50 lakhs is all put together. Yes, sir. All put together. Where tax, ITC, involved, fee or penalty, appeal does not exceed. They have used the word or. The tribunal work on question of facts, right? Tribunal, high courts. हाँ, कभी कभी कुछ, जैसे हमारे जीएसटी में आज की तारीख में जो लिटिगेशन हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा मैटर फैक्ट वाला भी है. तो मोस्ट ऑफ टाइम नहीं जाता है मैटर ट्रिब्यूनल तक फैक्ट वाले, बट कभी कभी जाते हैं. और हमारे जीएसटी में तो बहुत ज्यादा जाएंगे. In most of the cases they deal हमारे we are not dealing in question of law, so you go to the high court.
सो हर क्वेश्चन इज अ ट्रिब्यूनल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही करता है, फैक्ट पे भी करता है. सो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली पूछा जाए तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में अगर जाता है ट्रिब्यूनल तो नॉर्मल रिमांड बैक ही करते हैं मैटर को, कि इसमें सब देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. सो वी हियर बाय रिमांड बैक दिस मैटर. In case now, since there are going to be two member, if the amount is exceeding 50 lakhs, the two member will be hearing the appeal. So in such case, if a situation arises, there is a difference of opinion among the member of bench. क्या करेंगे अभी? एक का कहना है नहीं, taxpayer is correct, दूसरे का कहना है department is correct. So in such cases, president shall refer the case to the another member of the bench. वो बोलेंगे कि आप भी आपका देख लो और आपका व्यू दीजिए, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी विल डिसाइड द केस. सो दिस सिचुएशन आल्सो समटाइम्स अराइजेस. नाउ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन वी अप्लाई फॉर द प्रेसिडेंट और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर? कैन यू अप्लाई? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? टेक्निकल मेंबर. हाँ, टेक्निकल मेंबर के लिए तो सर इस टेक्निकल मेंबर ले कर सकते हैं. Anyone wish to apply? किसी को बढ़ास निकालनी है. So the criteria for the president is he should be a judge of the Supreme Court or has been the Chief Justice of the High Court. So here not possible. Judicial member, he should be the judge of the High Courts or the 10 years of experience. He's a judge for the District Court for the 10 year. Or the advocate practicing in the litigation for 10 years in indirect tax or more than that. So no chance for the advocate in the judicial member also. Understood? So yes sir. So when you say there is no consensus by two members and it is referred to the third member by president, does the client need to appear again and make all the submissions to the third member? If third member wants any other clarification, if you want to hear us, so he will ask. So the entire thing or only limited? It depends the fact of the cases, how the matter proceed. Minimum age requirement is 50 years. So 50 years के ऊपर के लोग चाहिए, सब सीनियर मेंबर. You know, इसके ऊपर भी मद्रास हाईकोर्ट में केस हुआ था और ये केस फाइल हुआ, गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड कर दिया विदाउट वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑल्सो. गवर्नमेंट हैज मेड द अमेंडमेंट इन जीएसटी एक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल प्रोविजन. फिर उसके बाद जब ये प्रोविजन आया था कंपोजिशन का, चेंजेस हुए थोड़े बहुत, वापस मद्रास हाईकोर्ट में केस हुआ कि नहीं हम एडवोकेट लोगों को भी अधिकार चाहिए कि हम जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं, बिकॉज बाकी ट्रिब्यूनल मेंबर में, बाकी जो भी ट्रिब्यूनल से अलग अलग लॉज में, लेबर लॉ वगैरह वगैरह में, वहाँ पे ट्रिब्यूनल लॉ में, ट्रिब्यूनल लॉ पहले सेल्स एक्ट में भी था या इसमें भी सेस्टैट में भी, कि वहाँ पे एडवोकेट को अलाउड है जो प्रैक्टिस करा 10 ईयर से कि ही कैन बिकम अ जुडिशियल मेंबर. सो दिस व्यू ऑफ द केस इज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट इमीडिएटली. वन ऑफ द फास्टेस्ट अमेंडमेंट इन द जीएसटी आई विल से, इन जीएसटी लॉ. वहाँ पे ये हुआ नहीं, यहाँ पे अमेंडमेंट प्रपोज हुआ और बजट आने से पहले फ्यू डेज बिफोर ओनली बजट अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट जीएसटी एक्ट में पास हो गया इन स्पेशल वो उनका कुछ करके. सो यू कैन सी दैट गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस फॉर फॉर्मिंग द ट्रिब्यूनल. अदरवाइज दे कुड हैव वेट फॉर द, अभी 1 फरवरी को बजट आ रही है, ये अमेंडमेंट मेरे हिसाब से दिसंबर में हुआ है और माइट बी इन जनवरी स्टार्ट ऐसे कुछ. बट गवर्नमेंट सीम्स टू बी वेरी सीरियस फॉर फॉर्मिंग द जीएसटी ट्रिब्यूनल. एंड सुप्रीम कोर्ट में मैंने डिसीजन शायद मेरे इसमें डाला या नहीं डाला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है सेंटर को कि आर यू रियली सीरियस फॉर फॉर्मिंग द ट्रिब्यूनल और नॉट, प्लीज लेट अस नो. सो इट्स रियली गोइंग टू, वी कैन सी ट्रिब्यूनल एज अर्ली एज पॉसिबल नाउ. नाउ लेट अस सी टेक्निकल मेंबर. सेंटर और स्टेट के उनमें भी वो जो क्राइटेरिया काफ़ी हाई है, आप वो उनके ऑफिसर होने चाहिए करंट या पास्ट, IRS वगैरह वगैरह. सो यहाँ पे भी हमारे लोगों का कोई स्कोप नहीं है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, we can be only other side of table. Now tenure. President can hold the his position up to the age of 70 years or maximum for the 4 years plus additional 2 years.
जुडिशियल टेक्निकल मेंबर दे कैन होल्ड द पोस्ट अप टू देयर 67 years 4 years. ये क्यों जानकारी चाहिए मालूम है? जब हम जाते हैं सिस्टार्ट में और वगैरह वो बात करते हैं अभी इसका टर्मिनल खत्म होने में आ रहा है, अभी नया बेंच फॉर्म होगा, अच्छा बेंच होगा, नहीं ये बेंच बहुत अच्छा है, हम इनके पास से हमारा मैटर करना चाहिए जल्द से जल्दी. सो वी शुड नो ये सब चीज़ें, इट्स माइन्यूट पॉइंट्स ऑफ द लॉ. इट्स नॉट एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द सीए फाइनल एग्जाम, बट वी शुड नो दिस. Now, what is the time limit for filing the appeal in tribunal? We have the choice for, just asking, we have the choice for, getting address to some bench, is it so? नहीं. You said we either can ask. नहीं वैसे नहीं बात करते ना कि अभी ये बेंच है, ये दूसरा बेंच चेंज हो जाएगा वगैरह. Yes, what is the time limit to file the appeal in tribunal? Any case? 3 months. Same. यहाँ पे वो सेम रखा है उन्होंने, याद रखने के लिए इजी है. 3 months. And they have made some amendment by way of removal of difficulty order, where they have mentioned that 3 months will start from the date when the president or the state president enters the office. So जब president और state president आएगा उसके बाद ही 3 years count होगा. Sorry, 3 months. So when we file an appeal in the tribunal, department may file the memorandum of cross objection. So हम जो भी हमारा submission देंगे, department may file their memorandum of cross objection within 45 days of the receipt of the notice कि हमने appeal file किया है. Here tribunal may admit that if there is a delay within 3 months after the expiry. So here we get totality 6 months in tribunal. Unlike in case of first appellate authority, how much time you get in totality? 4 months. Here how much? 6 months. And for department also additional 45 days. How much is the fee while filing the first appeal? 10%. Fee. Huh? Fee is not there. But for tribunal there is a fee. How much we'll discuss. So we need to pay the fee. And how much is the pre-deposit in case of tribunal? 20. हाँ? ये सब हमें डिसीजन या आपके जब भी विल डिसाइड व्हाट नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वी शुड डू. सो वी शुड नो दिस. सो 20% pre-deposit we need to do for the tribunal purpose. So हमें additional 20% करना है या 10% already किया तो अभी सिर्फ 10% करना है? 10%. Yes. So how much? कितना करना है? 20% of disputed. So अगर मान लो आपकी डिमांड 5 करोड़ की है, so how much pre-deposit you will make at the time of filing appeal in the tribunal? हाँ? Wrong. 1 crore. It's additional 20%. So if you read the provision, it says a sum of 20% of the remaining amount of tax in dispute in addition to amount paid under first appellate authority. Total 30%. Huge amount. So अगर मान लो 5 करोड़ की है तो आपको लोग 30%, 1.5 करोड़ तो डिपॉजिट चला जाएगा. So we should prepare. जो भी आपके केस में अगर मान लो you are waiting for filing any appeal, so client को बता के रखो कि 20% डिपॉजिट लगेगा. Prepared for that amount for that. If there is high pitch assessment. हाँ? If there is a high pitch assessment, let's say classification something like that. हाँ? High pitch assessment है, for example. High pitch हो गया, बहुत high pitch हो गया. हाँ? Assessment. हाँ? And if I don't have money, factually I don't have money. Is there any alternate remedy? या फिर तो सर आपको फिर आपका अगर एक्सेप्शन नॉर्मली हाई कोर्ट विल नॉट एंटरटेन इन द वेवर ऑफ प्री डिपॉजिट, बट अगर आपका ऐसा कोई सिनारियो आता है, एक्सेप्शनल सिनारियो है, सो इन सच केस यू कैन मे ट्राई द रिट पिटीशन. यू मे ट्राई, आई एम नॉट सेइंग मतलब कि, बट वही एक चारा है, उधर कोई चारा नहीं है आपके पास. ट्रिब्यूनल तो आपका अपील एक्सेप्ट करेगा नहीं, बट आपके पास कोई एक्सेप्शनल सिनारियो होना चाहिए. हाँ,
जैसे मान लो आपका कस्टमर गवर्नमेंट एंटिटी है एंड ऑलमोस्ट यूर 100 करोड़ और 50 करोड़ इज पेंडिंग विद देम एंड दे आर नॉट रिलीजिंग, ऐसा कुछ आपके पास सिनेरियो होना चाहिए जो कन्विंसिंग होना चाहिए हाई कोर्ट को. Tribunal, yes. So our question was that remand back. So can tribunal remand back the matter? Yes, tribunal has a power to remand back the matter with such direction as they deem fit. Tribunal, wherever they will remand back the matter, always remember they will write something. We have a direct authority to do. Yes. 20% can be paid by credit deposit. हाँ, उस लॉजिक से यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे भी डिस्प्यूट शायद हो सकता है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार होगा भी वो कैसे समझेगा मालूम नहीं. यहाँ पे रजिस्ट्रार होते हैं तो, बट आई थिंक यहाँ पे वो इशू नहीं आना चाहिए. शुरुआत में शायद आ सकता है पहला जब मंथ होगा. सो वेन एवर द मैटर इज रिमांडेड बैक, दे विल रिमांड बैक सेइंग दैट we hereby direct the authority to kindly check all the records and submission which taxpayer wish to make, and thereafter passed a reason order. It's very important. These words are very important. These are like slap on the face of the department कि आपको ठीक से काम करना है. Adjournment, definitely we can seek the adjournment. Law में लिखा है कि we can grant maximum to 3 adjournment. Rectification of error. अच्छा, अपील ऑर्डर में रेक्टिफिकेशन हो सकता है. Anyways, I am going to deal this topic afterwards also. So, अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में कुछ मिस्टेक है apparent on record या जो आपको दिख रही है, which you can see it, you can make an application for rectification. Tribunal is also expected to dispose of their appeal within 1 year. It's not mandatory, but it is it's guideline to them. Now appeal to GSTAT is required to be filed in the form APL 05. So APL 05 में हमें अपील फाइल करनी है. इसका जो मैकेनिज्म होगा, क्या जीएसटी पोर्टल पे करना है, क्या अलग वेबसाइट होगा, दिस विल बी क्लियरिफाइड इन सून पीरियड. एंड द फीस फॉर fees for the filing of appeal is rupees 1,000 for every 1 lakh rupees of amount of tax in in dispute, or maximum up to 25,000. So 1,000 for tax in dispute, maximum to 25,000 is the fees which you need to make a deposit. In case of tribunal, you need to file the certified copy of the order. Here still that requirement is there कि आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर सबमिट करना है. सर्टिफाइड बाय डिपार्टमेंट और सेल्फ सर्टिफाइड? हाँ, यस, सर्टिफाइड बाय डिपार्टमेंट और सेल्फ सर्टिफाइड. So law is silent on this, but better to take the certified by the officer. Additional evidence, in case of additional evidence, not grounds of appeal, evidence अगर आपके पास कुछ है, whether in case of first appellate authority or GSTAT, you are not allowed to produce except where they are refused to be admitted. आपके पास अलग कोई और एक प्रूफ है जो आपको दिखाना है एविडेंस, तो आपको अलाउड नहीं है अगर आपने शुरुआत के आपके सबमिशन में नहीं दिया है. ओनली एक्सेप्शन इज दैट यू हैव बीन रिफ्यूज्ड टू इट हैज बीन रिफ्यूज्ड टू एडमिट, और इट हैज यू हैव बीन प्रिवेंटेड बाय सबमिशन. नाउ वेयर इज द जीएसटी ट्रिब्यूनल? सो the first notification for forming the GST tribunal dated 13th March 2019, 13 मार्च 2019 को ही नोटिफिकेशन आया था कि हम न्यू दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच को फॉर्म कर रहे हैं. और उसके बाद तुरंत 21 अगस्त 2019 में नोटिफिकेशन आया था कि वी आर फॉर्मिंग द स्टेट बेंच एरिया बेंच.
in Mumbai, Maharashtra and also other city of Pune and Nagpur. 2019 में आया था. Why so delay? Yes? सेकेंड टर्म हाँ? सेकेंड टर्म थी ना तभी. Second term थी. The reason is that, anyone want to say why delayed still? Yes? So far what I have heard is that there was a dispute between State Department and Central for the locations basically. Because in Okay, location is one reason. That is also correct. Huh? Availability of the officer. The main reason is that the case was filed in the Madras High Court with respect to composition of the benches. मतलब जो बेंच के मेंबर है ना, वो पहले ऐसा था, एक जुडिशरी था, एक सेंट्रल का टेक्निकल मेंबर था. टेक्निकल मेंबर मतलब डिपार्टमेंट ऑफिसर ओनली, और एक स्टेट का. इसका मतलब क्या हो रहा था? जुडिशरी कितने थे? जुडिशरी कितने थे? सब लोग थोड़ा सा ऐसे, यार मैं 5-6 दिन के लिए आपके लिए सब प्रिपरेशन कर रहा हूँ. सो प्लीज, आई नो आफ्टरनून है, इलेक्शन का मौसम है. सो पहले कितने थे? एक था. 1 जुडिशियल, 1 टेक्निकल सेंटर, 1 टेक्निकल स्टेट. सो मद्रास टैक्स बार एसोसिएशन बहुत एक्टिव होती है सब मैटर में, पहले भी और अभी भी. They have filed a case. How we can ensure that fairness in the decision making if the department authority is going to have the maximum number? तो ये मैटर पेंडिंग रहा. पहले गवर्नमेंट को लगा शायद ये देख लेंगे क्या करना है, फिर उसके से डिले हुआ, और फिर उसके बाद लॉ में अमेंडमेंट आया कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 2 जुडिशरी रखते हैं. सो प्रिंसिपल बेंच में व्हाट दे डिड 1 प्रेसिडेंट एंड 1 जुडिशरी. बट प्रेसिडेंट का भी क्वालिफिकेशन रखा है, वो जज होना चाहिए. करेक्ट? सो 2 जुडिशियल मेंबर वहां पे हुए, एंड स्टेट में दे आर सेड 2 जुडिशियल मेंबर. सो दैट वे दे आर बैलेंस्ड. This judgment of the Madras High Court and another rightly said by Chetan sir कि स्टेट में भी बेंचेस का था. जैसे बहुत सारे, ये जब ये नोटिफिकेशन आया ना कि मुंबई, जैसे अभी अपने महाराष्ट्र में लिखवा है मुंबई और पुणे नागपुर, फिर बाकी लोग बोले विदर्भ, हमारा क्या? बराबर है, हम औरंगाबाद के लोगों ने कहाँ जाना चाहिए? फिर गोवा लोग बोले हमारा क्या? बराबर है. उड़ीसा के लोगों ने लेटर भेजा कि नहीं, हमारा इसमें नहीं जमेगा, इतना कम हमें नहीं जमेगा, पहले पेंडेंसी बहुत ज्यादा. ऐसे लेटर्स बहुत सारे गए. सो दिस ड्यू टू 2 reasons this matter got delayed. Here court said categorically while passing judgment, number of the expert member therefore cannot exceed the number of judicial member on the bench. And exactly सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या, ठीक है, एक्सीड नहीं होने चाहिए ना, हम वो बराबर कर देते. ऐसा करना चाहिए ना, शायद 3 होने चाहिए थे, यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, या यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए था, ऐसे कुछ होना चाहिए था. बट ठीक है. देन फाइनली ये जब मैटर क्लियर हुआ, व्हेन दे मेड द अमेंडमेंट इन लॉ, दे हैव अगेन इशूड अ नोटिफिकेशन. हियर दे हैव इशूड फर्स्ट नोटिफिकेशन फॉर द स्टेट बेंचेस. सो ऑन 14 September 2023 government has issued notification setting the benches for each state. You can see this notification. Almost every state has 1 or 2 benches. See, Maharashtra is privileged to have Maharashtra with Goa 3 benches. And how many locations? Mumbai, Pune, Thane, Nagpur, Aurangabad and Panji. So 3 plus 2 plus 6, almost 6 locations and 3 benches. So administratively we will see that how they are going to manage. वो बोल रहे कि एक छोटा सा बेंच, मतलब सर्किट बेंच ऐसा कुछ कंसेप्ट रखेंगे जहाँ पे पुणे में भी रहेगा, ये सब जगह एक थोड़ा रहेगा. लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. देन आफ्टर दैट 14 सितंबर को स्टेट बेंचेस का आया. उसके बाद 29 दिसंबर 2023 प्रिंसिपल बेंच फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आया. इंटरेस्टिंगली इन वन ऑफ द जजमेंट वहाँ पे लिखा है कि आप प्रिंसिपल बेंच फॉर्म हुआ है, वहाँ पे अपील फाइल कर दो. वन ऑफ द हाई कोर्ट दे हैव सेड कि प्रिंसिपल बेंच फॉर्म हुआ है, आप अपील फाइल कर दो ट्रिब्यूनल में. आफ्टरवर्ड जो तैयारी करनी चाहिए ट्रिब्यूनल की, व्हाई आई एम शोइंग दिस टू गेट अ फीलिंग दैट अभी ट्रिब्यूनल आ रहा है, अभी आने वाला है. Another notification they issued that appellate tribunal their appointment and all related rules 2023. So 25th October 2023 को ये नोटिफिकेशन आया कि इनकी जो सैलरी स्ट्रक्चरिंग, इनको जो भी कुछ होता है वो सब के जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर रेगुलेशंस, उसके भी रूल्स आए हैं.
सो 25 अक्टूबर और 23 का नोटिफिकेशन आया है. Our Revenue Secretary Sanjay Malhotra said on the 3rd February कि you can expect GST terminal by July or August. This is a statement by the Revenue Secretary. And that time he only told कि आपको in 2 weeks you can see that we are going to start the filling the vacancy for the bench member. So 3 फरवरी को आया था. उस टाइम उन्होंने लिखा था, मतलब प्रॉपर इसका वीडियो भी है, न्यूज़ पे आप देखोगे, हिंदू को दिया था उन्होंने शायद इंटरव्यू. सो कि अभी हम जुलाई तक लाएंगे टर्मिनल को, जैसे ही नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो भी उन्होंने लिखा है उसमें. और हम इसकी वैकेंसी फिल करने का काम शुरू करें बस 1-2 हफ्ते में. सो उसके बाद ये एक न्यूज़ आई थी भोपाल में कि भोपाल में GST टर्मिनल जुलाई तक बन जाएगा. सातपुड़ा के पहली मंजिल पर बैठेंगी बेंच. हमारी कहाँ बैठेंगे बेंच हमें नहीं मालूम, बट बैठेंगी जरूर. So again, as said by the Revenue Secretary, उसके बाद 2 हफ्ते में ही पेपर में न्यूज़ आया to fill the vacancy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजमेंट आ गई कि we are hereby invite the application for 32 member and some member वगैरह वगैरह for central and state benches. उसका जो क्राइटेरिया वगैरह दिया. So therefore, my dear friends and seniors, that is really high time for us that we should start preparing for the tribunal. ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर आवर एरिया ऑफ प्रैक्टिस. ऑलरेडी वी आर नाउ ऑलमोस्ट GST में हम 6-7 साल से काम कर रहे हैं, अनगिनत सेमिनार अटेंड कर चुके हैं. सो वी शुड स्टार्ट रीडिंग. अभी कुछ ना कुछ इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस और आएंगे ट्रिब्यूनल के प्रोसीजर के रिलेटेड. ट्रिब्यूनल के अलग रूल्स आएंगे शायद मेरे हिसाब से. सो देयरफॉर आई विल से, जो तेज हवा का झोंका है उसको किसने रोका है, जो सबके लिए मुश्किल है वो आपके लिए मौका है. सो एनी क्वेश्चन ऑन द ट्रिब्यूनल रिलेटेड एस्पेक्ट्स? यस. अगर कोई केस हुई है एक्स पार्टी, अपील आई नहीं, मिली नहीं, जब बाद में पता चला बैंक अटैच होने के बाद कि ऑर्डर की, अब जब ऑफिसर से मिले तो ऑफिसर बोले कि यार अनेक्शन आई फाइल कर दो कि हम ट्रिब्यूनल में जाने वाले हैं. इस केस में क्या होगा? तो ट्रिब्यूनल अपील अनेक्शन देना ही पड़ता है ना आपको, मतलब अनेक्शन दे. अब वो लोग सिर्फ इतना देगा हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे. हाँ, वही प्रोसीजर है अभी. दैट इज द प्रोसीजर. हाँ हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम आया था ना अपील के लिए. नहीं, अपील ऑलरेडी हुआ है ना आपका. अपील हुआ ही नहीं, हुआ है. लेट फाइलिंग में अपील हुआ, अपील सिस्टम ले लेता है बट वो ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करता. अगर एक्स पार्टी हुआ था उनका ऑर्डर, तो अगर एडिशनल सबमिट कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? तो आपने बोला था कि एडिशनल नहीं, फिर तो अच्छा ग्राउंड है ना, एक्स पार्टी हुआ है तो आपको आगे झगड़ने के लिए. एमनेस्टी आया था, वो सर बोल रहे हैं आपको, तो एमनेस्टी नहीं किया आपने? एमनेस्टी तो दिसंबर तक ही था ना, ये ऑर्डर उसके बाद वाले थे. अच्छा, यस यस. Sir, probably they misunderstood on this statement what you said in the presentation, that additional submissions can't be made. It is like while filing an appeal, whatever grounds you have given, afterwards it cannot be submitted. हाँ, You were trying to say like this. हाँ, एविडेंस देखिए, एडिशनल ग्राउंड आप कर सकते हो बाद में भी. ग्राउंड्स ऑफ अपील इज डिफरेंट एंड एविडेंस इज डिफरेंट. एडिशनल ग्राउंड्स आप बाद में कर सकते हो बाय मेकिंग एन रिक्वेस्ट. एडिशनल एविडेंस आपको डिफिकल्ट, मतलब दे विल से नहीं हम अभी एविडेंस लेंगे एडिशनल, या आपको बताना पड़ेगा सर हमें ये रीजन पे हम पहले नहीं दे पा रहे थे, अभी हम दे रहे हैं. यस यस यस, कर सकते हैं आप विद रिक्वेस्ट. यस चेतन सर, ओके. हाँ, वो थोड़ा सा मतलब आपकी केस कैसे जा रही, क्या जा रही है उसके ऊपर रहेगा. DRV कैसे लेता है उस चीज को. यस सर, मेरे केस में मैंने ऑलरेडी अपील फाइल किया था. एक अपील फाइल किया था, उसमें 10% प्री डिपॉजिट भी भर दिया. अपील वाज रिगार्डिंग नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर, और फिर आफ्टर सम टाइम वो सप्लायर ने उसका टैक्सेस वगैरह भर दिया और वो अभी GST एक्टिव हो गया है. तो मुझे वो 10% प्री डिपॉजिट फिर से अगर लेना रहेगा, मतलब अभी तो केस वैसे सॉल्व हो गया ना, क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंट था पहले. ये आप फाइल द अपील. यस यस, अब अभी अपील डिस्पोज ऑफ हुई या नहीं हुई है? नहीं हुई है, तो वो कैसे, मतलब अभी क्या कर सकते हो? तो आपका 10% डिपॉजिट दिया हुआ है आपने. सो आपको अभी आपकी जब हियरिंग होगी तब आपको सब दिखाना पड़ेगा. जब आपके फेवर में ऑर्डर पास होगी तब आप उसका रिफंड फिल अप.
हाँ, उसके पहले नहीं कर पाओगे. Yes. Can the appeal be withdrawn from the? Yes. You can make the request and by stating the reason. तो ऑर्डर अपील हो जाएगा. इस केस में अगर अपील ही विड्रॉल कर ली तो ऑर्डर ही अपील हो जाएगी. ऑर्डर? हाँ, कुछ रीजन होगा उनका, शायद हाई कोर्ट में गए होंगे. अगर मान लो आप हाई कोर्ट में जाने की कोशिश करो दो एट साइमल्टेनियस एक्शन यू कैन नॉट टेक. बट आई थिंक देयर इज अ टाइम लिमिटेशन आल्सो. वो कुछ मेरे हिसाब से है. यस. वैट का केस था, सो वैट में व्हाटएवर वैट का मत पूछो सर. नहीं जीएसटी लिंक है. हाँ. तो एट दैट टाइम वो सीबी पोर्टल चल नहीं रहा था. वैट मतलब सर्विस टैक्स का था, और वो तब उनका पोर्टल चल नहीं रहा था, तो प्री डिपॉजिट मैंने जीएसटी से किया. जो प्री डिपॉजिट भरना था सर्विस टैक्स का 7.5%. I did it to DRC 01 by taking their approval. Now that case I went to tribunal. और ट्राइब्यूनल ने केस फेवर में दिया. तो अभी जो मैंने भरा है पैसा 7.5%, so that I should get it back from GST. Yes. But now they are telling me मैंने रिफंड एप्लीकेशन किया, तो बोल रहे हैं कि हमारे पास भरना नहीं चाहिए था, तो उधर भरना चाहिए. So in that case what is सर्कुलर भी आया था इसके ऊपर. सर्कुलर देने के बाद भी दे आर लाइक कि ये गलती हुई थी आपने. नहीं, नीड टू चेक द डॉक्यूमेंट देन. इसके ऊपर मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया था, कुछ ना कुछ आया था. Some people have paid the tax for erstwhile taxes through DRC 03. Yes sir. जो ये नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर है, उनका जो क्रेडिट है आईटीसी का डिसअलाउइंग प्रॉपर्ली, एंड देन व्हेन वी फाइल द अपील, अपील फाइल कर रहे हैं, बिफोर दैट द आईटीसी हैज बीन ब्लॉक्ड. क्या सर? जो ये नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर है, तो उसका जो आईटीसी हमने ले रखा है फॉर एग्जांपल, देन वो केस तो ये हो गया, अभी हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट. फॉर फाइलिंग द अपील वी नीड टू पे द प्री डिपॉजिट. सो बट बिफोर प्री डिपॉजिट ओनली दे हैव ब्लॉक्ड द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो उसके लिए कुछ है क्या? क्रेडिट लेजर में अमाउंट ब्लॉक कर देना, सम सर्टेन अमाउंट. यस. उसको भी आप फाइट कर सकते हो वगैरह वगैरह उस ब्लॉकिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट, और उसमें भी 1 ईयर का टाइम लिमिट होता है. 1 ईयर का टाइम लिमिट नहीं गया है अभी तक. उन्होंने तो बेसिकली जो मैंने लिया है क्रेडिट, वो तो उसको खाली करना चाहिए ताकि मैं अपील फाइल करूं प्री डिपॉजिट. बट दे आर नॉट डूइंग इट इवन आफ्टर गिविंग द एप्लीकेशन. सो देखना पड़ेगा सर इस केस में. यस. ऑफिसर का कहना क्या है, नहीं क्या अलाउड कर रहा है वो खरीद ही रहा है. हम बोल रहे हैं भाई यही तो हम लोग रिवर्स कर रहे हैं ना. आई मीन बाय पेइंग द प्री डिपॉजिट. मेरे हिसाब से सर वो शायद उसका, बट उसने एक बार आपका ऑर्डर पास कर दिया है, तो आई थिंक इट शुड रिलीज ना. एग्जैक्टली, इट शुड रिलीज. एक बार देखना पड़ेगा सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह. यस, एनी अदर क्वेश्चन? Now, ways to handle the litigation, legal ways. Into bracket, huh? Yes. So many times you can see that हमने जब आप कोई सीनियर से बात कर, हमने केस इस मैटर पे उड़ा दिया, इसी मैटर पे उड़ा दिया, या इस पॉइंट पे उड़ा दिया, which we are not aware. बराबर है? So we should know that procedural aspect of that litigation or adjudication. Before I proceed, I wish to show you one video. Is it audible? Yes, my lord. And what is your department is doing? Same day notice, same day the SSC is asked to appear without giving any reasons, not following the direction issued by this court in Agrawal Dine. Why should we not issue contempt notice?
for not following the directions of this court. You file your reply why contempt should not be issued. Join the persons in name, Mr. Sukhjit Kumar as the highest officer of this unit, Bhavnagar unit. Yes, Mr. What do you say? Why this is not done? The High Court does not pass the order only for sake of passing. It is for compliance and implementation by the department. Are you aware about the decision of the Agrawal Line? Yes, my lord. The order, my lord, the notice was given to the taxpayer, but he Does not contain any reason. Notice contains the date of appearance on the date of notice. Then what is the purpose of issuing such cryptic notice? That means your department is trying to help the petitioner so that he cannot appear, he cannot file reply. You file your, then you pass the order, they come here, challenge it and we quash it. That is how the modus operandi appears to be of the department. Yes, my lord, this problem was there because of system things, ma'am. Sir, and we have issued after the Honorable High Court has passed the order in previous case. Even in court has also taken note of your issue and thereafter the directions are given. Are you aware of that? You just see how the court is hiring the commissioner. In the department, what are the directions issued by this court in way back in 2022? Please, Para 18. Read them now. So that everybody in the world hear and wisdom prevail upon the department. Final conclusions are Read loudly. नहीं पर्पज ऑफ शोइंग द सी कि किस तरह से कोर्ट जीएसटी को ले रहा है. So we should be also confident while dealing our our cases. final conclusions are as under until the department is able to develop and upload the appropriate software in the portal. Are you able to hear, Mr. Kumar? Yes, yes. Please. जैसे हमारे ऑफिस में आर्टिकल का आपको दर्शन है इस तरह से ही हो रहा है. Until the department is able to develop and upload the appropriate software in the portal, which would enable the department to fill all the necessary information and materials, particulars in the show cause notice as well as in the final order of cancellation of registration that may be passed, the authority concerned shall issue an appropriate show cause notice containing all the necessary details and information in the physical form and forward the same to the dealer by RPAD. In the same manner, when it comes to passing the final order, the same shall also be passed in a physical form containing all the necessary information and particulars and shall forward to the dealer by RPAD. 18.2. Over a period of time, we have noticed in many matters that the impugned order cancelling the registration of dealer travels beyond the scope of a show cause notice. Many times the dealer is taken by surprise when he gets to read in the order that authority has relied upon this inspection report, the spot visit report, etc. If the authority wants to rely upon the particular piece of evidence, then it owes a duty to first bring it to the notice to the dealer. So that if the dealer has anything to say in this regard, he may do so. Even if the authority wants to rely upon any documentary evidence, the dealer should be first put to the notice of such documentary evidence, and only thereafter it may be looked into. The aforesaid may appear to be very trivial issue, but it assumes importance in reducing the unnecessary litigation. Our concern is that on account of procedural lapses, the High Court should not be flooded with the writ applications. Why unnecessarily give a 8 years back on 24 February 2022. therefore thereafter the department has passed on these instructions and not they are now for When was the instruction was passed? not in December 20, not in December 2020. What is the date of this notice? February. This notice date is 13th of December 2022. Even thereafter, the similar notices are being passed in spite of the instructions. Clear direction is given that unless software is amended, you have to give physical form. What is that hurry to cancel the registration? You can suspend it. That instructions if required. Given they would follow this procedure. That instructions is given now they would not be following all these Ask your principal commissioner to remain present tomorrow. He is from Ahmedabad, he or she. Yes. And let him also come tomorrow to Ahmedabad.
tomorrow at 11. Let all be here. Now this has to be solved, Mr. And whatever pending matters are there before this court, withdraw all the notices forthwith and resolve the issue and issue fresh notice. We are not against issuance of notice. They are bound. Please come here tomorrow, sir, so that this can be sorted out. Sure, sir. Sure. I am obliged. Come with your principal commissioner of the state, both CGST and SGST. Ask them to be here and you also accompany them. Yes. Sure, At sir. 11 tomorrow. Sir. And you prepare the list of the matters from your department, how many such matters of show cause notice are pending in the High Court. Let all matters action be taken and put an end to within a stipulated time. We are not here to pass repetitive orders. Once the court has already decided the issue, or face the music. Choice is yours. Tomorrow. Yes. I am obliged. Face the music. Or face the music. So you can see that how the courts are taking the order and which department is passing. You know, many times ex parte's order is passed. Many times you are submitting a very detailed, very nice, properly presented reply, and they will say reply not found sufficient, right? किसी का हुआ है सब कुछ ठीक था. Rarely, if officer go into details. So you know, all these mistakes are a positive point for you in the next course of an litigation, maybe in tribunal, or maybe in the first appellate authority also. So many times this procedural lapse by the department. Procedural lapse means not hearing you properly, not taking into consideration all your replies, a defect in the notice, right? Not passing the speaking order, unsigned order, invoking extended period as per their wish. All these are important points for you to reply. You know, we'll see one more judgment, a very recent judgment of Bombay High Court. Here, in case of Sheila Dilip Jain versus State of Maharashtra, the only 7 days were given to reply to show cause notice, and then 8-day order was passed. Now see the observation by the High Court. Here the purpose of showing the case law that not कि हम लोग High Court में जाएंगे हर एक केस के लिए. The purpose to increase our confidence while discussing our while having the hearing और जो हम ऑफिसर बात करते हैं. तो ऐसी हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं. सर देख लो ना, कर लो सर. We should also speak in a directing, humble language. Sir, it's not allowed. You cannot do that. You have to consider our submission, sir. You cannot straight away ignore it. We can talk like that. We should talk. So, High Court has observed that such order without application of mind, that an omission of respondent officer is adding already overburdened dockets of the code. Valuable judicial time is wasted. The officer seems not to understood or appreciate the hardship faced by the assessee. Here, High Court has imposed the fine on the department of 10,000 rupees as a donation to the PM Care Fund. These are the regular order. You can see such kind of an order are been passed in various courts across India. शायद मेरे हिसाब से एक मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था ई-वे बिल का, शायद कुछ रिसेंटली छोटा सा ही मैटर था, कुछ हाईवे जाम था, कुछ हुआ था, उस केस में भी इम्पोज किया फाइन सुप्रीम कोर्ट ने. एंड court said at least hold some kind of training orientation course to appraise and educate your officer on rules and law and explain how them the principle of natural justice. You know, so we should be aware of such judgment कि they cannot just pass the order that which as per their wish, or they cannot just ignore our submission, or they cannot just put a pressure on you. नहीं आपको करना है, आपको देना है, आपको दीजिए, मुझे order pass करनी है. If there is a really genuine reason, आपको time लगा, you should ask the time, sir, will submit in 15 days. Something is going on. Now,
The legal ways to manage litigation is that we should read the notice order carefully again and again. We'll find some another submission other than submission which you are doing as a legal law point of view, like that supplier ने टैक्स नहीं भरा था, supplier ने अभी भर दिया, या तो आप बोल दोगे कि नहीं ये गलत है, supplier ने नहीं भरा है, तो you recover from him. That is one part of submission. I am not going to talk on that aspect. Already आपने almost 5 lecture ना, so 5 lecture आपके हो गए GST law के ऊपर. But procedural aspect is very important. हम जो देखते हैं ना कुछ बड़े डिसीजन आते हैं 100 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की, ये प्रोसीजरल ग्राउंड पे ही केस छोड़ लेते हैं खुद की. So which we are not aware normally. Now, before I move ahead, one important good point in the GST right now which we can use it, I am using it, most of the professionals are also using it, rectification. Rectification application you can file. Let's say कुछ order pass हुई है, जिसमें गलती है, जिसमें ठीक नहीं है, you can apply for the rectification of the same. With respect to mistake apparent on the face of the record, जो apparent है, बराबर है, आप उसको rectification के लिए apply कर सकते हो. Yes? मैं example देता हूँ बाद में सर. Earlier I used to file the मैंने 2 cases में manually किया था. But Chetan is here. I called him that ये भाई online कैसे करना है इसका? So he said वो online भी option है इसमें. So right Chetan, interestingly we have discussed this point. लॉ में और एक बार लॉ में ऑनलाइन एप्लीकेशन करना कहीं पे नहीं लिखा है. मोस्ट ऑफ जीएसटी में लिखा है ना आपको ऑनलाइन जाना है, ये करना है. वो इस केस में ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है लिखा ही नहीं है. बट पोर्टल बाबा हमारा जिन्होंने अभी 2 दिन पहले रिकमेंडेशन दिया डेट एक्सटेंशन का, यू नो अगेन जीएसटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो रिकमेंडेशन था डेट एक्सटेंशन. शायद नोटिफिकेशन नहीं आया मेरे हिसाब से अभी तक. आ गया मैं सर आया. वो रेकमेंडेड था, पहली बार उन्होंने रेकमेंड किया, नहीं तो नॉर्मली वो डेट एक्सटेंड कर देते हैं. सो अगर आपके ऑर्डर में कुछ anyone has applied for rectification? Yes? तो आपकी क्या केस थी? उसमें क्लरिकल एरर था. Yes. So most आजकल में जो ऑर्डर पास हो रहे हैं, एक तो आईटीसी मिसमैच के हैं, उसमें भी अगर आपने कुछ अच्छा सबमिशन किया वो कंसीडर नहीं करते हैं, तो शायद आप कर सकते हो, बराबर है. मोस्ट ऑफ द जो फैक्चुअल है और जहाँ पे डिपार्टमेंट इन हरी दे आर पासिंग द ऑर्डर, उस केस में आप कोशिश कर सकते हो कि आप रेक्टिफिकेशन से मैटर को सॉल्व करें या ना करें. बट सर इसमें इशू एक हो रहा है कि अभी उन्होंने रिजेक्ट किया, तो आई डोंट गेट द एक्सटेंडेड पीरियड टू फाइल द अपील. हाँ वो है इशू, वो है इशू. तो वही पोर्टल पे वो एक्सटेंडेड पीरियड नहीं. हाँ तो रेक्टिफिकेशन में एक इशू होता है, तो आप रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आप इमीडिएटली उसको परस्यू करो, फॉलोअप करो, क्योंकि आपका अपील का टाइम लिमिट शुरू हो जाता है. फिर वो अलग एक मैटर ऑफ डिफरेंट व्यू है कि क्या हमारा टाइम एक्सटेंड होगा नहीं होगा, कि आफ्टर रेक्टिफिकेशन टाइम काउंट होगा. इस केस में 2 ऑर्डर रहेगी, एक आपकी अपीलेबल नॉर्मल ऑर्डर और रेक्टिफिकेशन की ऑर्डर जो रिजेक्ट की आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो अगर आपको लगा तो. हाँ यस अपील नहीं होती है. रेक्टिफिकेशन की ऑर्डर होती है ना, उसके बस अपील ही होती है, दिखती ही नहीं साइड पे. वो नॉर्मल ऑर्डर होती है. अपील की ऑर्डर होती है ना एसएमएस में. हाँ प्री डिपॉजिट शायद नहीं कर पाएंगे. ये मतलब एक जस्ट एज एन व्यू और मतलब क्योंकि वो भी एक ऑर्डर है, सो इट कैन बी अपील. और वहाँ पे हमारा रीजन ये होगा कि उन्होंने अपील हमारे एक्सेप्ट नहीं की है रेक्टिफिकेशन की. सो yes, technical difficulty arising on portal is what is happening. The order we are not able to file the appeal. No, that is the only not only that is the case. Original order is passed, that is created demand liability in liability ledger. Second order is rejection of rectification, that is only per se rejection of rectification application. So what is happening? The original order liability ledger is pending in the portal, and hence officer is issuing the recovery notices against that pending liability. So that is becoming a problem for all the people. My case what happened? My case what happened? The department passed an order. My mistake, the officer, instead of passing the amount, because there was a small IGST and equal amount of CGST and SGST. By mistake, he passed SGST under IGST and IGST under SGST. So मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था सर. तो उसको जब बताया मैं, हाँ कि हम तो अपील फाइल करते हैं, आपने ये किया है तो बोला नहीं तुरंत रेक्टिफाई कर. रेक्टिफाई किया और सिस्टम पे आ गया ना बरोबर. प्री डिपॉजिट भी करेक्ट होने लग गया उसको. But rectification why people are saying प्री डिपॉजिट
नहीं होगा rectification के बाद. The application is rejected in my case. It is not accepted and a fresh order is passed in the rectification. If the rectification order application is rejected, then you in are not that able to case, get the Original thing should be there, no? So original का Because time has not come. yes, sir, time limit. So time limit is not. थोड़ी दिक्कत है जीएसटी में प्रैक्टिकली बहुत चीजें सर का अलग क्वेरी था अभी जो मुझे भी देख सोचना पड़ेगा कि इस केस में क्या करना पड़ेगा बराबर. सो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन के केस में कि हमारा टाइम लिमिट काउंट हो जाए शुरू होता है अपील का. सो आप थोड़ा ज़्यादा फॉलोअप करिए. अब अगर आपको लगता है कि रेक्टिफिकेशन में दम है और सॉल्व हो सकता है और ऑफिसर भी बोल देते हैं हाँ ये मिस्टेक जिस सर के केस में हाँ ये मैं कर दूंगा, सिर्फ वो कर दूंगा और करने में टाइम लग जाता है. हाँ मैं वो कवर किया है मैंने उसमें पैरेलल प्रोसीडिंग के ऊपर. माय रिकमेंडेशन व्हाइल परस्यूइंग योर मैटर फॉर द रेक्टिफिकेशन बी मोर हम्बल देन नॉर्मल adjudication matter because it is a matter of judgment whether it is a mistake apparent on the record or not or on the face or not. और DRC 08 वो इशू करते हैं नॉर्मली रेक्टिफिकेशन और विड्रॉल ऑर्डर समथिंग. Now can we file the rectification for mistake on the fact or mistake of law also? Only facts. So what is the meaning of rectification? So here I am referring some judgments. Supreme Court said that a debatable point of law, a debatable question of fact also, debatable question of fact or debatable question of law is not a mistake apparent on the record. जो debatable है. It doesn't now cover any mistake which is discovered by complicated process of investigation. जो complicated है वो मिस्टेक अपरेंट रिकॉर्ड में कवर नहीं होगा. मिस्टेक अपरेंट ऑन रिकॉर्ड और ये रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो रिव्यू और रिवीजन से अलग है. डिपार्टमेंट कैन नॉट गो एंड रिव्यू इट्स टोटल ऑर्डर. इट्स डिफरेंट. रेक्टिफिकेशन इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन इज ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. एंड बॉम्बे हाई कोर्ट held that rectification can be filed for mistake of fact also for mistake of law also. है सर और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है. यस. सो अगर आपके केस में कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ सर्कुलर था जो ऑफिसर ने कंसिडर करना चाहिए तो उसने नहीं किया है, जो अपीरेंट है बहुत मतलब इजी है, ये है जिसे पैरेलल प्रोसीडिंग का सर ने बताया अभी एक इशू जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो आप बोल सकते हो सर आप रेक्टिफाई करिए प्लीज. अगर वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी ये लॉ का मैटर है मैं कैसे करूँ, सर आप कर सकते हो, लॉ के मैटर भी कर सकते हो आप. रेक्टिफिकेशन विल रिड्यूस लिटिगेशन इन बिगर वे. सो रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस ऑनलाइन माय application or rectification, here you can go and you can just submit your application. There is no form for the application but just procedure to file the application. Understood? Rectification. Now the two cases which I'll discuss with you. One of the case as a parallel proceeding. आपने present sample देख लिया था क्या सर? नहीं ना. So what happened? In one of our case, central authority also passed the order on the same matter. State authority also passed this matter. One matter we have already concluded and part order is in favor. Another order they have raised a demand. And a big amount, almost 1 crore like that. And almost the matter, whereas for other authority they have settled down and demand is almost 50,000 or 1 lakh something. So now so what is the action? Go for appeal for 1 crore, right? So what we did, you file application for rectification. Sir, you cannot do the parallel proceeding. The matter is already concluded by one authority. First, the adamant that officer तो हिंदी में था, सब कुछ दूसरे स्टेट का था, तो सुनने को तैयार नहीं थे. मैंने उनके राज्य का हिंदी का जीएसटी का कानून निकाला, उनको वो प्रोविजन दिखाई कि आप ये नहीं कर सकते हो. फिर बहुत 4, 5, 6, 7 बार क्लाइंट गया वहाँ पे फॉलोअप किए एंड देन दे हैव रेक्टिफाइड दैट मैटर. यू अंडरस्टूड द केस? यस और नो? सो वेयर द मैटर ऑलरेडी डेल्ट बाय वन अथॉरिटी इट इज कंक्लूडेड. बराबर. सेकंड अथॉरिटी पास द सेम ऑर्डर ऑन द सेम सब्जेक्ट बट उन्होंने वो डिमांड कंफर्म की थी एंड इनकरेक्ट
another case happened in one of my case that कि डिमांड सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट का ही डिमांड था. डिमांड वाज ऑफ ओनली ऑफ इंटरेस्ट, बट व्हाइल पासिंग द ऑर्डर authority has mentioned the CGST, HGST amount in CGST. Some amount they have done mistake in while passing the order, and due to which I am required to pay the pre-deposit. जो कि मुझे pre-deposit आना नहीं है क्योंकि मेरा टैक्स की अमाउंट ये और नो बोलो यार, आफ्टर का टाइम समझ ऐसे मत करो. टैक्स मेरा नील था, बराबर है. मनोज सर चाय की भी व्यवस्था है नहीं है? So I think on that matter only I called चेतन कि यार ये और मेरे पास जो क्लाइंट भी आया था बहुत लेट आया था, मतलब बहुत कम टाइम बचा था मुझे, शायद 2 दिन ही बचे थे अपील फाइल करने के लिए, रेक्टिफिकेशन नहीं अपील फाइल करने के लिए. बट दिस वाज वेरी ब्लंट मिस्टेक अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड कि यार ये तो उसने और एक मिस्टेक किया कि टैक्स में तो अमाउंट आना नहीं चाहिए था, बट उसने सीजीएसटी एचजीएसटी दोनों अमाउंट सीजीएसटी और कुछ तो ऐसे किया था, अलग इसमें डाल दिया था. देन वी डिड दिस ऑनलाइन प्रोसेस और फिर उन्होंने इमीडिएटली कर दिया. सो यू कैन रियली सेव योर क्लाइंट बाय डूइंग द रेक्टिफिकेशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज जीएसटी में जो लिटिगेशन हो रहा है मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो है ये जो ऑर्डर्स है ये बेस्ड ऑन द फैक्ट ही है. आपके हिसाब से आपकी सबसे डिफरेंस नहीं था, डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया, जो कि है ही नहीं लायबिलिटी आपकी. यस आपके पैरेलल प्रोसीडिंग में वो दूसरे स्टेट के ऑफिसर ने क्या किया, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया या पास किया रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया. they have reduced the 1 crore demand to directly 50-60,000 rupees. सेम एज हाँ. Yes. Can only appeal be filed for interest and penalty? Like in my case, there is no. You can pay the tax amount, ना? No, tax is already paid. Only the interest and penalty is to be paid. हाँ, you can. So हमने वही किया ना, हमारे केस में टैक्स अमाउंट था ही, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का ही था, डिस्कशन सब कुछ. Yes. Yes sir. Apparent on the face of the record. Apparent on the face of the record. Whatever is on the record, that can be rectified. म्हणजे तुम्ही काही डॉक्युमेंट दिलेली आहेत रेकॉर्डवरती आणि ती जर का चुकून त्या ऑफिसरनी कन्सिडर केली. आता आपल्या याच्यामध्ये मिसमॅचमध्ये समजा रिटर्न फाईल झालेले आहे मधल्या काळामध्ये आणि ते जर का दॅट इज अवेलेबल ऑन द रेकॉर्ड, यू कॅनॉट ॲड एनी डॉक्युमेंट ॲट इन द रेक्टिफिकेशन ऑर्डर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंडली रेक्टिफिकेशन ऑर्डर जर का झालेली असेल त्याच्याविरुद्ध अपील करायचा जो इश्यू आहे, तर आय थिंक वन्स द ओरिजिनल ऑर्डरच्या आधीच अपील नाही केलेलं, दॅट मीन्स दॅट ऑर्डर यू हॅव ॲक्सेप्टेड, ओनली रेक्टिफिकेशन इज पेंडिंग. नाउ इफ यू फाइल एनी अपील अगेन्स्ट रेक्टिफिकेशन, that is only against that order of rejection of rectification. Right. You cannot raise any ground about original order in that. Right. There for that another appeal required to be filed. ते जर का टाइम बार झाला असेल तर तो विषय गेलाच नाही. फक्त रेक्टिफिकेशनची Perfect sir. केलेली आहे ती फक्त ऍक्सेप्ट करण्यापुरतं फक्त अपील करू शकतो. बरोबर. Incorrectly rejected the that for that we yes sir. At least the officer can enhance the demand. Once supposedly the rectification enhances the interest. So because of the delay of the 3 months of passing the rectification order or 4 months. So the original order, the rectified order should stand in the shoes of the original order because it is same with respect to the. Once your rectification order is accepted, the date will be current date. You get additional 3 months. Once your rectification order is accepted, they pass the rectified order, you get additional 3 months time because it goes into the shoes of original order. It merges with the doctrine of merger, right? And you get additional 3 months, but only if it is accepted. But till that time the order is passed, the interest is that is enhanced with the respect to the original demand. So at least he can pass a enhanced interest order. हाँ. Respect to the original order. So Okay. at least he can file a pre-deposit. He is giving a planning that you meet to the officer and ask अगर reject करना है तो कम से कम accept कर, liability बढ़ा दे ताकि मेरे को time मिल जाए. हाँ. You increase our interest demand. So additional favorable point for the officer. हमारा rectify हमारा कुछ भला हो रहा है, तुम्हारा भी भला कर लो. So importantly said by हेमंत सर कि हम जब rectify कर रहे हैं तो mistake apparent on the record. बराबर है. नॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफिसर आपको वही बोलेगा, ये नहीं करूंगा ये करूंगा, आपको कन्विंस करना है इसमें. नहीं सर ये मिस्टेक अपरेंट ऑन रिकॉर्ड है, ये आपके पास था, हमने दिया हुआ था, ये एक्नॉलेजमेंट है सबमिशन का, आपने शायद इग्नोर किया होगा, इस तरह से.
Now, unsigned notice are not valid. Rule 26 of GST law says that ki all notice, certificates, order in GST law should be signed. One very landmark judgment in British era, which is referred by various times in the by courts, that Nazir Ahmed versus King Empire. It is said in that judgment that where a particular power is given to do certain thing, that thing must be done in that way or not at all. मतलब अगर कुछ ऑफिसर अधिकारी को ऑफिसर को कुछ पावर दी है ये करना है तो उन्होंने वैसा ही करना है या तो नहीं करना है. Based on these judgments, all the procedural aspects either struck down by the courts or set aside or remanded back. Now in case of unsigned, हमने जो एक देखा भी था अभी डिस्कशन में शायद here that. Now here, see again the planning of litigation. इस केस में क्या हुआ था, मैं जो अभी केस दिखाऊंगा आपको. कैंसिलेशन की जो ऑर्डर पास हुई 2019 में हुई थी, उसके अगेंस्ट रिवोकेशन अपील कुछ नहीं हुआ था. और जब ध्यान में आया तो सब कुछ टाइम निकल गया था. So now whether to go for condonation of delay? Everyone is with me? Yes. Or should I repeat? करूँ रिपीट? मतलब आपका ध्यान नहीं है. देखिए क्या हुआ था 2019 में एक एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया. रिवोकेशन वो भी भूल जाइए, एमनेस्टी होगा थोड़े देर टाइम के लिए, नहीं तो कोई बोलेगा नहीं सर एमनेस्टी में जाइए ना. 2021 में ध्यान में आया कि यार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, अपील के लिए भी टाइम लिमिट खत्म हुआ है. सो नॉर्मली फर्स्ट थॉट कम इन माइंड कंडोनेशन ऑफ डिले. अभी कैसे कंडोन किए इसको? कोर्ट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट वाइल कंडोनिंग द डिले. वो ऐसे ही हर एक केस में नहीं करते हैं. दिस ऑब्जर्वेशन बाय द इन दिस केस जब ये सबमिशन किया जो भी उनका कंसल्टेंट होगा, ही वेरी ब्यूटीफुली आई ऑब्जर्व दैट जो ऑर्डर थी वो साइन नहीं थी. फिर दे वेंट फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड साइंड कॉपी ऑफ द ऑर्डर. सर्टिफाइड साइंड कॉपी ऑफ द ऑर्डर. And based on that, for the case, and as per them, that limitation period of the appeal should start मतलब it never began in 2019. It should start from the 2021 जब signed copy मिली. और वही कोर्ट ने बोला, we agree with the petitioner stand that only on the date on which the signature of the issuing authority was put on the order, the time limit to file would commence. So this is the way we can handle the litigation. This way we can prepare our submission. Or the strategy, as I said, कि हम interest को बोले तुम्हारा भी भला हमारा भी भला. These are very important aspects. You know, we ignore while preparing our submission. Now, speaking order. GST law categorically says that in section 75, the officer shall set out the facts and the basis of his decision. He should pass a very detailed order. आपने देखी है डिटेल ऑर्डर? अच्छा, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? सीजीएसटी डिटेल में होती है या एचजीएसटी डिटेल में होती है? सेंटर की, बिकॉज दे हैव अ लेगेसी ऑफ दैट ऑल दिस so many years of that the principle of national justice to be followed in the litigation. So वो लिखेंगे आपको एकदम डिटेल में, ये है ऐसा ऐसा है. नॉर्मली स्टेट पे आपको डायरेक्टली बोलेगा ये डिमांड है, बात खत्म. बराबर है? या तो बोलेंगे आपकी लायबिलिटी हमने वर्कआउट किया, कैसे किया, क्या किया, कुछ नहीं मिलेगा. सेंट्रल का भी ऐसे होता है, ऐसा ना जरूरी है कि नहीं होगा, वो भी होता है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन. अगर मान लो उन्होंने वैसे ऑर्डर पास नहीं की है, इट इज समथिंग गुड डिफेंस फॉर यू. देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑन दिस. That Supreme Court landmark judgment that reason is the soul of the law. It is referred by department also. Department ने उनके इंस्ट्रक्शन में भी डाला हुआ है. I remember this. शायद CGST या मेरे हिसाब से तमिलनाडु GST डिपार्टमेंट ने उनका कोई तो एक इंस्ट्रक्शन था, उसमें इस जजमेंट को रेफर भी किया हुआ है. Reason is the soul of the law and reasons for a particular law ceases, so law also ceases. मतलब आपको रीजन ठीक से लिखना है ऑर्डर पास करते वक्त. Recently, Bombay High Court, in one of the judgment, has said, I will just read the important thing. यहाँ पे भी ऑर्डर जब पास किया था,
High Court said that this is a serious lapse. We find that in many matters, concerned officers do not provide all the details. Perhaps they do not have proper training or adjudication matter, or even they are not aware about the legal provision. High Court said, therefore, we are also warning the department officer that court will not be so generous in future, and may even consider directing the observation made in the career record of the officer. So again, one judgment Mittal Agro Private Limited ki it is settled law that non-speaking order is a violation of the Article 14 of the Constitution, and this is a ground for setting aside that order. Honorable High Court of Madras, in case of Rajendra Steel Industries, since the order determining the dues is non-speaking, same is set aside. In case of Madras High Court again, they have said that order issued to the petitioner is only one liner. So आपके केसेस में जहाँ पे भी ऑर्डर ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक से नहीं है, इट इज़ अ गुड डिफेंस फॉर यू. आप जब आपका सबमिशन बनाओगे तो आप उसमें लिख सकते हो ऑन दिस ग्राउंड्स ऑफ अपील अलोन कि दिस ऑर्डर शुड बी सेट असाइड. बाकी तो मैटर में जाना ही नहीं है, वो मैच मिसमैच है, सप्लाई टैक्स भरा है नहीं भरा है, जो भी कुछ है बराबर है, लायबिलिटी वगैरह वगैरह. या अपील में जाके कहना है सेट असाइड. हाँ, अपील या फिर आपका आगे ट्रिब्यूनल तक तो डेफिनेटली ट्रिब्यूनल तो हमेशा इस केस में सुनता ही है. ऑफिसर कैसे सुनेगा सर? यस. हाँ, यस 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 बहुत सी हमें ग्राउंड्स ऑफ अपील जब हम डालते हैं तो हमें सब डालना है विदाउट प्रेजुडिस टू द अदर ग्राउंड्स ऑफ अपील and independent to each other. हाँ, बट प्रोसीजरल ग्राउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो शायद आपके लॉ वाले पॉइंट से भी आपको केस जितवा सकते हैं. यस. सो ये जो भी वन लाइनर ऑर्डर होते हैं ना, जहाँ पे आपको डिटेल देते नहीं है, अच्छी बात है, मतलब आपके लिए अच्छा पॉइंट है. सिर्फ राइटिंग में रखो सब कुछ. Dear sir, we request you to kindly provide the working of the same, as we are not able to understand how these liabilities work out. होता है ना, आपको हुआ होगा, समझ में नहीं आया लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई तो ही कैसे हुई है. And court is very harsh in such cases. हाँ, मतलब this case is ऐसे केसेस को कोर्ट लाइटली नहीं लेता है, ट्रिब्यूनल भी लाइटली नहीं लेगा. आपका पहले इसमें मैटर आपके फेवर में आ जाएगा, पहली हियरिंग में आपके फेवर में आ सकता है अगर ऐसे केसेस है तो. Gujarat High Court said that reason and वगैरह resulting into the miscarriage of the justice. Therefore, applying the same principle, show cause notice is set aside and quashed वगैरह. Supreme Court recently now another aspect of handling the cases is that आपको जब ये DRC 07 जब आता है, ऑर्डर होती है बराबर है, या शो कॉज नोटिस आती है, जब भी आपको शो कॉज नोटिस के केस में मैं बोलूँगा अभी, नॉर्मली दे विल से डेट बाय विच रिप्लाई टू बी सबमिटेड, डेट आएगी वहाँ पे, करेक्ट. फिर डेट ऑफ हियरिंग वगैरह शायद एनए लिखा होगा. होता है कि किसी केस में आता है डेट ऑफ हियरिंग, लोग इसके ऊपर भी झगड़े हैं. एंड देयर आर फेवरेबल जजमेंट. इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज सेड दैट Allahabad High Court has set aside the order and show cause notice where officer has denied the personal hearing or are not given the details for the personal hearing. The two judgment, I think टाटा का भी एक जजमेंट रिसेंटली आया है जहाँ पे इसी मैटर के ऊपर सिर्फ एनए लिखा हुआ है पर्सनल हियरिंग के डेट टाइम वेन्यू के ऊपर. सो ऐसे भी हम ग्राउंड्स लेने चाहिए. सो देयरफॉर जो सीनियर एडवोकेट होते हैं नॉर्मली बोलते हैं कि आप एक बार पढ़ोगे आपकी नोटिस ऑर्डर जो भी है, वापस एक बार पढ़ो और एक बार पढ़ो. अब जब 2-3-4 बार आपको अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है हमारे लिए. अंडरस्टूड? समझते हैं? नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट ऑर्डर कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द शो कॉज नोटिस. व्हाट इट मीन्स? जैसे हमें एडिशनल ग्राउंड नहीं देंगे, उनको भी एडिशनल कोई डालती नहीं है. हाँ,
कुछ लोग सो रहे हैं या क्या है? रिक्लाइनिंग चेयर बड़े अच्छे होते हैं इस केस में। यस सर। यहाँ पे आपने कहा कि ऑर्डर कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द शो कॉज नोटिस, और शो कॉज नोटिस आ जाती है कि तुम्हारा 9 में आपने रिवर्सल बोला है, 3B में किया है नहीं, वो पूरा बुक्स लेके बैठ जाता है, फिर ये मिसमैच वो मिसमैच ये वो सब निकाल के फिर ऑर्डर में डाल देता है। तो क्या इसमें हम नहीं, पहले शो कॉज नोटिस में डालेगा। शो कॉज तो बस यही आया था कि 9 में रिवर्सल है, 3B में नहीं है। अमाउंट तो होगा ना उसमें। हाँ, अमाउंट तो आई थी, तो वही ऑर्डर में है क्या? ऑर्डर में तो बहुत कुछ आ गया, फिर उसने ITC रजिस्टर निकाला। हाँ, तो आपके लिए अच्छा है फिर ये, पूरा बुक्स लेके बैठ गया फिर। आपके लिए अच्छी बात है। सी, जब भी प्रोसीजरल मिस्टेक होगी, इट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एंड जब आप नेक्स्ट लिटिगेशन के स्टेज में जाओगे, अभी आपका अपील होगा तो ट्रिब्यूनल में जब जाओगे तो ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, हमें बैंक ने शो कॉज नोटिस इशू किया था, तो उन्होंने एक्चुअली क्या ग्राउंड मतलब क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि 9C में 9 में जो टेबल 8 में जो कंपैरिजन देते हैं 2A का और ITC का, तो उसने क्या पूछा था कि टेबल 8 में जो ITC का वैल्यू दिया है वो और 3B में जो हमने ITC क्लेम किया है, तो उसका डिफरेंस जो है उसका उसने रीज़न पूछा था। तो अभी उसमें मेरा क्वेश्चन 2 है, तो उसने क्या किया एट द टाइम ऑफ पर्सनल हियरिंग, उसने वो जो क्वेश्चन था उसके साथ उसने ITC का जो डिफरेंस है उसका भी रीजनिंग पूछा और इसका भी आंसर हमसे रिटर्न में लिया। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर प्रोसीडिंग्स में वो अगर हमसे पूछता है ये बात कि जो शो कॉज नोटिस में उसने पूछा ही नहीं था, तो क्या हम उसको काउंटर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग कि आप नहीं पूछ सकते क्योंकि आपने शो कॉज नोटिस में लिया नहीं था? सर, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू हैंडल एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग। शायद वो आपको अलग नोटिस दे दे, आप बोलोगे कि आप तो नोटिस में नहीं है, आप ही कैसे पूछ रहे हो? बोले अच्छा, और एक नोटिस देता हूँ तुझे मैं। तो इट्स डिपेंड्स हाउ यू विश टू हैंडल, राइट? कभी कभी आप बोल सकते हो कि ठीक है सर, आपके नहीं ध्यान में आ रहा है ये चीज़, अगर आपको आगे जाना है तो जाइए, मुझे अगले फिर आप अगले स्टेज में भी टेकअप कर सकते हो उसको। और सर, उन्होंने ऑर्डर इशू किया उसके बाद में, तो ऑर्डर में उन्होंने उनका जो क्वेरी था और हमारा जो सबमिशन था वो पूरा स्टेट किया उसमें, और उसके नीचे लिख दिया कि ये हमको नॉट सफिशिएंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट, रिप्लाई फाउंड नॉट सफिशिएंट वगैरह वगैरह। तो वो भी नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के कैटेगरी में आएगा क्या? आएगा। देयर आर जजमेंट आल्सो वेयर दे आर सेइंग रिप्लाई फाउंड इनसफिशिएंट, बस इतना ही लिखते हैं। सफिशिएंट क्या नहीं वो तो बोलो, क्या सफिशिएंट नहीं लगा आपको? कुछ अलग सफिशिएंट नहीं लगा है क्या? यस यस सर। CGST का ऑडिट है सर, 8 साल का निकालते हैं नॉर्मली। इन प्रोसेस है, सबमिशन दिया हुआ है 21-22 तक का ऑडिट है नोटिस। प्रोसीडिंग्स में बोल रहा है कि 22-23 का डेटा भी आप सबमिट करो, ईमेल सेंड किया है कि जैसे पहला नोटिस है वही डेटा 22-23 1 साल का और सबमिट करो। ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ मेल किया। नोटिस अलग पीरियड का है। पहले 5 साल का नोटिस, हाँ, फिर बोल रहा है कि 22-23 का भी हो गया है। नहीं, फिर वो आपको अलग नोटिस इशू करेगा बाद में। सो देयर आर जजमेंट्स वेयर ऑर्डर शुड नॉट ट्रैवल बियॉन्ड शो कॉज नोटिस। सो अगर आपके केस में ऐसे होता है तो मैंने यहाँ पे जो भी केस लॉज दिए हुए हैं आप रेफर कर सकते हो। नाउ अनदर थिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, मतलब जो मैटर ऑलरेडी कंक्लूड हुआ है उसको वापिस ओपन अप नहीं कर सकते हैं। Revenue cannot re-adjudicate and issue fresh show cause notice again for the same action for the same period on the same subject matter. I will discuss one case which I dealt in one of the Gujarat client, जहाँ पे उनका एक वही ITC का इशू था, मिसमैच वगैरह वगैरह, और बड़ा अमाउंट था। अभी जो नोटिस आया था वो बड़े अमाउंट का था। क्लाइंट ने हमको बोला सर हमको पहले इसी ईयर के लिए इसी टॉपिक पर ऑलरेडी नोटिस आया था और वो कंक्लूड हुआ है। बोलो बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे वापस से रिकंसिलेशन चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैंने सिंपल इतना ही रिप्लाई किया, डियर सर दिस मैटर इज ऑलरेडी adjudicated by the department, the copy of the earlier notice and order and our submission is enclosed herewith based on the principle of res judicata.
which is accepted by the honorable courts, we request you to kindly drop this order, kindly drop this notice. And they accepted it. They have accepted it. So हम इस प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं कि एक बार मैटर खत्म हुआ है, उस साल का, उस सब्जेक्ट का, उसको वापस ओपन अप आप नहीं कर सकते हो. दिस प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ देयर शुड बी एंड टू द लिटिगेशन. बराबर है. मतलब किसी के ऊपर मुकदमा डाल दिया, मान लो सर ने मेरे ऊपर डाल दिया, इन्होंने कुछ मर्डर वगैरह कर दिया, वो बोले नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, वापस वो केस नहीं डाल सकते मेरे ऊपर. जाना है तो ऊपर के कोर्ट में जाइए. बराबर है. अंडरस्टूड. मैं थोड़ा क्वेश्चन सर बाद में लेता हूँ, टाइम कम बचा है इसलिए. नॉर्मली आई लाइक टू टेक द क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस सेशन ओनली. थोड़ा बोरिंग नहीं होता है, बट अभी टाइम कम बचा, मुझे कवर ज्यादा करना है. डीन आप सब लोगों को मालूम है? यस और नो? आई ऑलवेज यूज दिस. पोलाइटली आपको लिखना है. मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टेट ने शुरू भी किया है, बहुत सारे स्टेट्स में अभी हो रहा है, मतलब स्टेट अथॉरिटी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है. सेंटर को तो मैंडेटरी है, बट आपको जब भी सेंटर से आता है और उन्होंने सेंटर के केस में खास करके अगर डीन नहीं होगा, पोलाइटली आप लिख दो, सर इवन दो यू आर नॉट मेंशन द डीन, वी स्टिल रिप्लाइंग एज पर द सर्कुलर ऑफ द सीबीआईसी डेटेड दिस एंड दिस. मैंने रेफर किया है शायद. नोटिस विदाउट डीन इज इनवैलिड, स्टिल वी आर रिप्लाइंग इट. मतलब उसको समझ में आ जाएगा, नहीं ये लोग थोड़े से होशियार हैं, मैं लाइटली नहीं ले सकता इनको. You know, this is again debates and matter going in courts. Notice uploaded in the additional tab and not view tab. दो टैब है ना, ये दो टैब क्यों है वो भी मुझे मालूम है. बराबर है. इसके ऊपर भी मैटर कोर्ट में गया है, कोर्ट ने बोला है कि नहीं आपने एडिशनल में डाला, उसको नहीं समझ में आया, आपने व्यू में डालना चाहिए था ना, आपने गलत टैब में डाला है. तो इस नोटिस को सेट कर दिया. दो केसेस मैंने यहाँ पे रेफर किए हैं, और उसी की वजह से अभी जनवरी 2024 में जीएसटी पोर्टल पे अमेंडमेंट आया. अभी एक सामने दिखता है. ये दो और दो चार जजमेंट ऐसे जो हुए हैं. यही फर्क होता है हमारे में एक और अच्छे एडवोकेट. हमने ये पॉइंट भी समझने चाहिए जब हम हमारा डिफेंस बनाते हैं, जब हमारा सबमिशन बनाते हैं. Now, very important aspect in GST now, रिटर्न्स गलत फाइल हो रहे हैं. बराबर है. फिर हमारे पास वो फाइल आती है, हमारे पास वो केस आती है दूसरे कंसर्न, हम देखते हैं अरे गलत हुआ था, उस गलत रिटर्न की वजह से ऑर्डर हुई है, नोटिस हुई, जो भी कुछ हुआ है. बराबर है. इन सच केसेस रिवाइज रिटर्न आप नहीं कर सकते हो. बराबर है. तो आप हाउ टू प्रूव दैट ऑफिसर दैट दिस डिमांड इज रॉन्ग, दिस रिटर्न इज रॉन्ग, राइट? क्योंकि कभी कभी रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक नहीं होते. कैसे हुआ है? होता है नहीं होता है. So in such cases, you may, I'm not saying you do, but you may think of giving the certificate from the chartered accountant. I use it normally many times. जब भी मेरे पास कोई CA लेके आता है कोई केस, और जब हम उसको देखते हैं तो यार वो बोलता है सर ये हुआ है, मतलब कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लो IT से रिवर्स किया, बट रिवर्सल में नहीं दिखाया हुआ है, उसने नेट टॉप किया हुआ है. बराबर है. ऑफिसर मान नहीं रहा है. व्हाट टू डू? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो बोले यार, ऐसे मत करो. सो आप यू मे थिंक, बिकॉज अगर आप चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट देते हो ना, तो इट हैज एन एविडेंटरी वैल्यू. देयर इज जजमेंट आल्सो, आई थिंक आई रेफर्ड. यस, मैंने एक सिस्टर का जजमेंट लिखा. इट हैज एविडेंटरी वैल्यू एंड इट हैज टू बी एक्सेप्टेड. सो आप जब ऐसा नॉर्मल लिख के दो कि हमने रिवर्स किया, शायद वो नहीं मानेगा. बट अगर सीएस लिख के देता है बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आई हियरबाय कंफर्म दैट सो एंड सो टैक्सपेयर हैज रिवर्स दिस आईटीसी, that officer has to consider it, or he may ask to ask additional records. He cannot ignore that. Understood? Now, how to deal with the case where mistake is in their return, and based on that mistake, officer has confirmed the demand. Right? ऐसे हुआ है? होता है? Yes or no? Yes. So in this case, see, based on the किस तरह से वो केस है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन है, क्या सबमिशन है, क्या हुआ है, बट आप शायद तो एक काम कर सकते हो, मैनुअल रिटर्न सबमिट करने की कोशिश करिए लिखे तो, कि ठीक है सर हमारा गलत हुआ, हम रेक्टिफाइड फॉर्म देते हैं. ऐसा लॉ में कहीं लिखा नहीं है, बट अगर नहीं है तो क्या करेंगे? अगर कोर्ट हमें रेक्टिफाइड ऑप्शन नहीं कर रहा है तो मैनुअल, इट इज जस्ट आप आपका एक सबमिशन बना रहे हो. अगर कल आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा तो आपका बेस नीचे से ठीक होना चाहिए. बराबर है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो आप वो एक कर सकते हो, मैनुअल सबमिट द फॉर्म,
जैसे GSTR 9 में, जैसे हमारे मैंने केस में देखा था, GSTR 9 में सब्सटेंशियली हाई लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी और वो फिर वो टेबल नंबर आई थिंक 6 और 7 से डिफरेंस निकाल के अमाउंट आया था, बराबर है, सब्सटेंशियली हाई हुआ था। और जो CA केस अभी डील कर रहा था उसने भी वो 9 नहीं फाइल किया, वो दूसरे CA ने किया हुआ था और समझ में नहीं आया था और बुक्स में भी अमाउंट नहीं थी और ऑफिसर नहीं आपने ही बोला है ना, आपकी लायबिलिटी, भरो ये पैसा। तो फिर ऐसे केसेस में आप एक मतलब एक जस्ट स्ट्रैटेजी, हम मैनुअल अच्छा रिटर्न GSTR 9 देंगे तो CA सर्टिफिकेट भी देंगे और केस लॉ भी रेफर कर सकते हो। जैसे मिस्टेक के ऊपर मैंने कुछ केस लॉज रेफर की यहाँ पे, जहाँ पे if there was an inevitable or typographical error that is script in any return, taxpayer could not be muted with the tax liability in excess of what was due and payable। और 2-3 केस लॉज मैंने यहाँ पे रेफर किए हुए हैं। इन वन ऑफ माय केस हमने भी एक हाई कोर्ट पे केस डाला था रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न के ऊपर और वो एक्सेप्ट भी हुआ है। सो हाई कोर्ट नॉर्मली रेक्टिफिकेशन के केस में इज ऑन द पॉजिटिव साइड, आपके फेवर में ही आएगा अगर हाई कोर्ट में जाते हो तो। पैरेलल प्रोसीडिंग आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसके ऊपर भी केस लॉज है। नाउ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट इज येट टू स्टार्ट इन GST। नॉर्मली CGST वाले एक्सटेंडेड पीरियड को बहुत यूज करते हैं, SGST वाले भी करना शुरू हो जाएंगे। 74 अभी ज्यादा यूज नहीं कर रहे, कि कर रहे हैं वो लोग आपके केस में हार्डली कर रहे हैं, बट जैसे अभी नोटिस ऑलरेडी 73 के बहुत है ना, 73 का जब उनका कम हो जाएगा ना तो 74 पे आ जाएंगे फिर ज्यादा, अभी ऑलरेडी बहुत वॉल्यूम है। तो 74 जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना, इसके ऊपर मतलब अनगिनत केस लॉज है, अनगिनत, जहां पे कोर्ट ने बोला है कि आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऐसे ही इन्वोक नहीं कर सकते हो। एक्सटेंडेड पीरियड कब लग सकता है? आई होप एवरीवन इज अवेयर, 74 में है, यस और नो? सो 5 साल का बराबर। सो वो ऐसा ही नहीं है ऑफिस को लगा, नहीं यार 73 तो खत्म हो गया, 74 को लगा लेता हूँ, ऐसे नहीं है। इट इज ओनली इन केस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सेपरेशन ऑफ बराबर है। अभी मुझे बताओ, मैंने ITC ज्यादा लिया है, डिपार्टमेंट बोल रहा आपने ITC गलत लिया है, प्रूफ किसको करना है? प्रूफ किसको करना है कि ITC मेरा सही है गलत है? बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इज ऑन whom? Taxpayer has to prove. It is an exception. Normally, in normal civil matters, a person who assert, he has to prove. बराबर है? ITC के केस में जिसको बोलना है कि मेरा सही है उसको प्रूव करना है, बराबर है? अभी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अगर जब लगा रहा है ऑफिसर, तो किसको प्रूव करना है वो गलत है या सही है? हाँ किसको प्रूव करना है? समझ लो क्वेश्चन सर। हाँ किसको करना है? किसको करना है मैडम आपके हिसाब से? क्वेश्चन समझ में आया? सो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, फ्रॉड, विलफुल सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट, किसको प्रूव करना है? So here department has to, you know, this is a very opportunistic area, very romantic, litigation बहुत मस्त लगता है करने में, और एक छोटे पॉइंट पे हम झगड़ सकते हैं। और इसमें मान लो सर, जैसे मैडम आपके पास अगर कोई 30 करोड़ की डिमांड है, बस बाकी मेरिट में जाने का ही नहीं है, प्रोसीजर ग्राउंड पे ही स्टक डाउन कर सकता है हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल करता है, हाईकोर्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं है। दिस विलफुल मतलब मैंने केस लॉ रेफर किए हुए बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे केस लॉ है कि देयर शुड बी इंटेंशन एंड डिपार्टमेंट शुड प्रूव दैट आई हैव अ कल्प्रिट इंटेंशन, माय इंटेंशन टू इवेट द ड्यूटी होना चाहिए, डिपार्टमेंट को प्रूव करना है, वो सिर्फ बोलना नहीं उनका इंटेंशन गलत था। अंडरस्टूड? यस और नो?
I'll not go into detail, but जैसे कुछ मैं लाइन पढ़ता हूँ कोर्ट की सिर्फ, so as to get a feeling. Suppression of fact can have only one meaning: correct information not disclosed deliberately, where facts known both to the party does not render it suppression. Mere failure to declare amount does not amount to willful suppression. Mere failure to declare, मैंने गलती से नहीं डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि सप्रेशन है. There must be some positive act from the side of SSC. Demand raised based on the balance sheet. Balance sheet is a public document, therefore it is not a suppression. Mere non-disclosure of receipt in the return. जैसे मान लो रिटर्न में आप गलती से भूल गए डालना और टैक्स भी नहीं भर दिया है, मान लो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था. यहाँ पे जो भी बैठा है मेरे हिसाब से किसी का भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होगा, बराबर है. आप खुद भी मान लो कि मेरा फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है था, मैं झगड़ूंगा इसी मैटर के ऊपर झगड़ूंगा और आप जीतोगे. तो डिपार्टमेंट को प्रूव करना है भाई इसका इंटेंशन गलत था. अभी उतना लिखेगा कौन, बराबर है. सो इसी मैटर में आप यू कैन विन दैट केस. See, here is the judgment again. Department failed to establish that petitioner has a reason of fraud or willful misstatement. Ex parte order, personal hearing not guaranteed. So it is an embedded provision in the law. मैंने पहले स्लाइड में लिखा था, law is powerful not because it's a law, because it has a right in it. So GST also says that personal hearing देनी है आपको. अगर आप एडवर्स डिसीजन दे रहे हो तो आपको पर्सनल हियरिंग देना कंपलसरी है. यू हैव टू गिव द पर्सनल हियरिंग. अंडरस्टूड? कुछ जजमेंट्स में ऐसे लिखा है, टैक्स पेयर ने वो जो ऑप्शन होता है ना, यू वांट पर्सनल हियरिंग टिक करना होता है, वहां पे शायद गलती से नो कर दिया था और कोर्ट हाँ कभी होता है, कभी हो जाता है सर. नहीं होता है सर, कभी यस भी होता है, मतलब आई अंडरस्टैंड नो होता है, बट यस भी कभी हो जाता है, मतलब वो कब होता है नहीं मालूम, बट हो जाता है. सो ऐसे केसेस में ऑफिसर बोला नहीं, उनकी इच्छा थी, उनको नहीं चाहिए था पर्सनल हियरिंग. एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए. अभी इतने जजमेंट्स आ गए तो जीएसटी ने ऑप्शन निकाल देना चाहिए. इट्स अ गुड पॉइंट फॉर रिप्रेजेंटेशन टू जीएसटी. तो कोर्ट ने बोला है कि अगर आप कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास कर रहे हो, जो लॉ में भी लिखा है सेक्शन 75(4) में कि आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाना ही है. अंडरस्टूड? सो अगर आपके केस में पर्सनल हियरिंग नहीं दी है और ऑर्डर पास हुई है, सो इन नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लिटिगेशन यू कैन से दैट दिस नोटिस और ऑर्डर इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस. नॉन कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई. नॉर्मली ये होता है कि वो लिखते हैं कि रिप्लाई फाउंड इनसफिशिएंट. सो इसके ऊपर भी केस लॉ कोर्ट हैज सेट असाइड द ऑर्डर. हायर कोर्ट के जो डायरेक्शंस होते हैं नॉर्मल लोअर अथॉरिटीज को बाइंडिंग होते हैं. अगर कोई भी ऑफिसर कभी भी आपको कोई केस में बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल, तो आप बोल सकते हो कि यू हैव टू फॉलो इट, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स. इन ऑर्डर डिले इन एडजुडिकेशन. बहुत ज़्यादा डिले हुआ है कभी केस में, बहुत ज़्यादा. जैसे वन ऑफ द केस आई एम डीलिंग, जब मैटर जो है ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स लिटिगेशन में है in north one of the state, 16-17 years litigation में है. So where one of the point I have as a ground of appeal, inordinate delay in the adjudication. भाई कुछ नहीं होता इस पे तो मेरे को छोड़ दो, क्योंकि 15-16 साल हुए ना, यहाँ पे कोर्ट ने लिखा भी है कहीं पे. It is detrimental and prejudicial to the interest of the taxpayer. और 15-16 साल किसको याद भी नहीं रहता है, तो नॉर्मली ऐसे केसेस में इसी पॉइंट पे फेवरेबल जजमेंट आ जाता है. Relied upon documents. So अगर ऑफिसर ने कोई किसी के स्टेटमेंट की वजह से आपको ऑर्डर पास की, तो यू कैन आस्क द कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट. यू कैन आस्क दैट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट. इफ इज नॉट फर्निशिंग, इट्स गुड फॉर यू इन अनदर सबमिशन. So now when tribunal will start, the remand back cases will be there. You know,
So what do you feel? Remand back is good or bad? हाँ? I will say जहाँ पे फैक्ट वाले मैटर आते हैं ना, वहाँ पे नॉर्मली कोर्ट तो जाता ही नहीं है हाई कोर्ट, बट जब रिमांड बैक होता है तो विद डायरेक्शन होता है कि यू चेक इट इन अ प्रॉपर वे, और जो भी उनके डायरेक्शन होते हैं। और ट्रिब्यूनल हार्डली कि 15 मिनट में आपको पूरा केस बताना होता है। जैसे मान लो आपका 5 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख में 10 लाख में 10-15 पॉइंट्स होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। सो रिमांड बैक हुआ, यू एक्सप्लेन ऑफ योर क्लाइंट आल्सो, वी हाफ केस वी ऑलरेडी विन। एंड इस केस में ऑफिसर भी थोड़ा सा he has to be very, मतलब नहीं अभी मुझे ठीक से देखना जरूरी है, I need to be careful while passing another de novo adjudication order। उसको de novo दोबारा adjudication order जब पास करता है, he has to be very careful। So remand back is also sometimes a good thing for us। कभी हमें लगता है ना कि हाँ रिमांड बैक करेंगे मतलब अभी हमारा कोई डिसीजन नहीं आएगा, टर्मिनल में से होने वाला है जहाँ पे हमारे फैक्ट वाले केसेस है बहुत सारे रिमांड बैक हो गए। आप पहले से ही क्लाइंट को बता के रखना रिमांड बैक हुआ, अच्छी बात है। Now many times हमें लगता है कि हमने हाई कोर्ट में जाना चाहिए। What do you feel we should go? जो भी हमने केसेस देखे, whether we should go to the high court or not, what we should advise to the client? या कभी-कभी कंफ्यूजन होता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। Yes? अल्टरनेटिव रेमेडी हो तो नहीं जाना चाहिए। गुड ऑप्शन सर। यस, शायद अभी जरूरत नहीं लगेगी, ट्रिब्यूनल फॉर्म हो जाएगा, बट जस्ट आई एम सेइंग कभी-कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं कि हमें डिसाइड करना पड़ता है अपील में जाए या हाई कोर्ट में परस्यू करें मैटर को। यस, हाँ मैटर टू मैटर, बट हमेशा ध्यान में रखना हाई कोर्ट में जाना आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, लास्ट वाला ऑप्शन है। अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया ना कि वी कैन नॉट एंटरटेन योर मैटर, यू काइंडली गो टू द अल्टरनेट रेमेडी, तो आपका केस ऑलरेडी वीक हो जाता है, डिपार्टमेंट अभी आ जाता है। तो यूज बी केयरफुल व्हाइल डिसाइडिंग वेदर टू गो इनटू हाई कोर्ट और नॉट। नो, डोंट बी इन हरी। डिले कर, नॉर्मली जैसे आपकी कोई ऑर्डर पास हुई है, बराबर है, और आपको मालूम नहीं था कि आपकी ऑर्डर ऑनलाइन पास हुई है। When you are applying for delay continuation, आप उस केस में ऐसा बोल सकते हो कि हम अपील विद इन द टाइम ही फाइल कर रहे हैं, डिले कंटिन्यूएशन में जाओ ही मत। आप बोलो मुझे अभी मालूम पड़ा है, ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड, therefore I am filing the appeal now, it is not belated। Understood? क्योंकि डिले कंटिन्यूएशन थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है टू कंडोन द डिले, और इट इज अ जेन्युइन, आपको अभी मालूम पड़ा है ना ऑर्डर पास हुई है, 3 महीने पहले पास हुई थी, बट अभी आपको मालूम पड़ा है, नहीं मेल आया, नहीं कुछ हुआ है, नहीं फिजिकल कॉपी है, इसके ऊपर भी जजमेंट है, फिजिकल कॉपी होनी चाहिए। वो एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड इशू है, जहाँ पे लॉ में तो पावर है, बट कोर्ट का कहना है कभी कभी नहीं फिजिकल भी दिया करो आप। सो जब अगर आपका कोई डिले होता है ना, तो आप बोलो कि हमें अभी मालूम पड़ा है, देयरफॉर देयर इज नो डिले। हाँ, फिर आप वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे आपकी अपील, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। सर देयर इज नो डिले, वी बिकॉज ऑफ ट्रिब्यूनल को भी, कोर्ट को मालूम है पोर्टल का सब स्ट्रक्चरिंग कैसा है, तो शायद आपके फेवर में दे देगा वो। और हम बता सकते हैं ना सर, जब आप जाओगे ना सर ट्रिब्यूनल, उनको बताना सर ये कैसे देखना पड़ता है, सर लॉग इन करो, सर्विसेज में जाओ, इधर देखो, फिर वो दिखता है। तो हर बार कौन जाएगा ना, भगवान के पास ही हर रोज जा सकते हैं हम लोग। दैट शुड ऑर्डर शुड कम टू मी, आई शुड नॉट गो टू द ऑर्डर ना। So with this I conclude my session. So friends, अरे 2 मिनट बात करनी है।